Yes. Respected members, I heartily welcome all the participants, speaker, guests, and experts in our today's programs, which has been organized on statutory bank audit. Ask your queries to expert. This program has been organized by Central India Regional Council of the Institute of Chartered Accountants of India. Friends, in this program, participants will have an opportunity to discuss their real life bank audit queries with our experts. The structure of our program will be such that we will first take queries which have been received in advance on email, WhatsApp, and chat box. And thereafter, we will invite members raising hand to talk with the experts. We will also give invitation to the members in mid of the program also, but priority will be that we should give opportunity to the persons raising hand at the end of the program. There will be mix up of all these things. Chief guest of our today's program is Honorable Anuj Goyal Saheb, CCM ICI from Ghaziabad, and Kemisha Soni ji, CCM ICI from Indore. I heartily welcome Anuj Goyal Sahab and Kemisha Soni ji. Speaker and expert of our today's program are Shri Piyush Khandelwal ji from Indore. He is a statutory central auditor of UCO Bank. And I also welcome Shri Aniruddha Tiwari ji from New Delhi. And third, our expert is Rajiv Gupta ji from Meerut. I heartily welcome all our guests and speakers. I request Vice Chairman of our CIRC, Shri Kishore ji Bardia, to welcome our guests and speakers. Kishore ji. Thank you, Sarath bhai. Respected Anuj Goyal sir, आज के हमारे स्पीकर पीयूष खंडेलवाल जी, अनिरुद्ध तिवारी जी एंड मेरे को कलीग राजीव गुप्ता जी. फ्रेंड्स, जैसा कि हम सब जानते हैं कि पिछले 4 दिनों से और आने वाले 4 दिनों तक हमारा यह बैंक ऑडिट का एक्सपर्ट पैनल ओपन है. एंड मैं अप्रिशिएट करूंगा हमारे टीम के मॉडरेटर आकाश बरगोटी जी और शरद जैन जी को, जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव इतने शॉर्ट टाइम पे लिया. और CIRC में संभवतः यह पहला प्रोग्राम इस टाइप का हो रहा है जब डेली मेंबर्स तो चूंकि बैंक ऑडिट में इन्वॉल्व है ही हैं, उनकी क्वेरीज तो आ ही रही है, बट हमारे एक्सपर्ट्स और हमारे CIRC के ऑफिसर्स, ऑफिस बियरर्स, हमारे सेंट्रल काउंसिल मेंबर जो डेली इस फोरम में आके अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, सभी लोग बैंक ऑडिट में बिजी हैं. उसके बावजूद हम कंटिन्यूअस हमारे मेंबर्स की क्वेरी को रिस्पॉन्स कर रहे हैं. कुछ मेंबर्स कभी ऑनलाइन नहीं भी आ पाते हैं तो उनकी क्वेरीज ईमेल के थ्रू या SMS के थ्रू हम मंगा लेते हैं एंड फिर हम अपने इस फोरम में एक्सपर्ट्स के थ्रू इस क्वेरी को सॉल्व करते हैं. तो मैं सभी का हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं. और इस पूरे प्रोग्राम में यदि कोई और कोई सुझाव की या मार्गदर्शन की आवश्यकता है तो जरूर शरद भाई और आकाश बरगोटी जी को इन्फॉर्म करें. थैंक यू सो मच. Thank you, Kishore bhaiya. धन्यवाद किशोर. Right. And I, along with my colleague Sharad. Right, है ना? हेलो आकाश जी, आगे हाँ जी, आ रही है. Right. Thank you, Kishore ji. And today I and along with my colleague Sharad ji will be coordinating and will be in fact moderating the today's session. And मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए because हमारे बहुत से members eagerly wait कर रहे हैं हमारे the most energetic central council member C Anuj Goyal जी को सुनने के लिए. तो मैं invite करूँगा C Anuj Goyal sir, our central council member from CIRC, to express his views, sir. Thank you, Akash ji, our honorable regional council member from Pink City of India, Pink City of Central Region and Pink City of Rajasthan, of course, Jaipur. Right, sir. And we are having the presence of CA Rajiv Gupta ji, our Dhan Kuber of Central Region, and my brother CA Sharad Jain ji, our honorable regional council member from the city of Mahakal. And very, very prominent resource persons we are having.
CA Anirudh Tiwari ji from the political capital of the country, Delhi, and CA Piyush Khandelwal ji from Mini Mumbai, Indore, and who is the Central Institute Auditor of UCO Bank also. And of course, my brother, our Honorable Vice Chairman of the Central Region, CA Kishore Bardia ji from the capital city of Chhattisgarh, Raipur. And all our honorable members, our seniors and dear friends. Very, very good evening to all of you. I am really very happy that Central India Regional Council has taken this very, very important initiative. And from the day one, from 1st of March, I am the witness that the CIRC is very, very active, proactive to see that how we can really do something very, very concrete for the cause of the members, for the cause of the students. And as now our profession is passing through from a tough time, I will say, and it is a need of hour that we have to discharge our responsibility as the branch statutory auditor as per the expectation of the society, as per the expectations of the regulator, as per the expectations of the stakeholders, as per the expectations of the investors, and how we can really follow the IRAC norms and the prudential norms. I think it is the need of hour. And we are very well aware that our honorable members have passed the toughest examination of the world, and they are the expert as far as the audit is concerned. But as far as the bank audit is concerned, bank audit is a specialized audit, and in normal course we are not doing it on day-to-day basis. And in spite of the fact that we may be very, very senior in the profession, but at times it happens that we may not be having the expert knowledge of the various provisions and the various changes which have taken place during the year. So I'm really very happy that CIRC has taken this very, very important initiative under the able leadership of Sharad Jain ji, Akash ji, Rajiv Gupta ji is our resource person also, and of course our vice chairman Kishore Badia ji, and we are having very, very prominent resource person Anirudh Tiwari ji and Piyush Khandelwal ji. Recently, on 5th of April, we had our strategic central council meeting at Mumbai, and then we were having the meeting with all the past presidents of the institute on 6th of April, and we were discussing that what should be the roadmap for our profession. Of course, we are treated as the best accounting professionals across the globe, not only by Indians, but practically we are recognized worldwide. There is no second thought about it. But we have decided that whatever communication gap, if it is there between the Institute of Chartered Accountants of India and the ministry, between Institute of Chartered Accountants of India and politicians, between Institute of Chartered Accountants of India and the regulators, we should certainly try to have a dialogue on a regular basis, so that there should not be any communication gap, and we can very well communicate them that what are the strength of our profession and how our Institute of Chartered Accountants of India, our Central Council, our Regional Council, our branches, all our Chartered Accountants are trying their level best to see that how they can contribute for the growth of this great country, for the great growth of our nation. And we are very well aware that there were some changes in the CA amendment bill, which have been passed by the Lok Sabha as well as the upper house, Rajya Sabha. And friends, 2-3 changes which are there. You must be very well aware. I will take only 2 minutes because we are very eager to hear our learned speakers and to who will be responding our queries. That the disciplinary mechanism of the Institute of Chartered Accountants of India. Earlier, out of 5
members of the disciplinary committee or the board of discipline. Three were supposed to be the central council members and 2 government nominees. Now, the Lok Sabha and Rajya Sabha has passed that all the 5 members of the board of discipline or disciplinary committee will be practically nominated by the Institute of Chartered Accountants of India, by the Central Council. Even the 3 names who will be not the chartered accountant will also be given by the council, by the Institute of Chartered Accountants of India itself. Earlier, those 2 government nominees were nominated by the government. Now, the 3 names will be given by the council itself, and 2 will be the central council members of the chartered accountants. And one major change is this, that the chairman of the board of discipline or disciplinary committee will be not a central council member. So this is the major change which is there as far as the disciplinary process is concerned. But earlier 2 government nominees were there from the government side. Now practically all the 5 names will be given by the institute. 2 central council member will be nominated by the institute, and 3 names of non-chartered accountants will also be given by the Institute of Chartered Accountants of India, by the Central Council, to the Ministry of Corporate Affairs, and they will be approving those 3 names. So this is the one of the major change. As far as the IIA is concerned, it was never there in the proposed bill. When it was gone to the finance committee headed by Jayant Sinha, all of a sudden वो बोतल में से जिन बाहर आया है, और we are seized of the matter. We are reaching to the finance minister. We are reaching to the prime minister, and I'm quite confident, and we are more than confident that as we are having a lot number of chartered accountants in the parliament also, whether Suresh Prabhu ji or whether ND Gupta ji, whether Piyush Goyal ji, I'm quite confident that through them also, and directly through the Minister of Corporate Affairs and Minister of Finance Nirmala Sitharaman ji, and will certainly reaching to the Honorable Prime Minister also, and we will certainly be in a position to communicate them that we are producing the best accounting professionals across the globe, and there is no second thought about it. Each and every accounting body of the world has practically recognized that the Indian Chartered Accountants are the best accounting professionals. But in spite of that, whatever improvements are necessary, we are ready to do the improvements. But that is the residential training. You are very well aware that in the proposed CRET, Committee for Review of Education and Training recommendations, we have already proposed that for the mandatory residential training for each and every future chartered accountant, the student. So we are trying our level best to see that how we can further improve the quality of our newly qualified chartered accountants. So as far as the bank audit is concerned, of course, very late the communication has come. Lot of banks must be communicating that within a stipulated time, within a week, we have to complete it. We should try to commence at the earliest. We should try to work even on holidays or Sundays, because a lot number of holidays and Sundays will be there. We should try to work even late in the evening if possible, and should try to complete in the given time frame. But even if we are not in a position to complete it, we are extending the time limit by 1 day, 2 day, 3 day, 4 day, 5 day, 6 day, 7 day. The sky is not going to fall. If we are justifying that we are putting our best to see that how we can try to complete the audit process in the given time frame, but as a lot of check and balances are required, if the branch is not prepared, if we are not satisfied, then believe me, the sky is not going to fall. Even if some pressure is there, you can very well communicate to the Central Statutory Auditors. You can very well communicate to the Institute of Chartered Accountants of India, to PDC. You can directly call to any of our regional council member or the central council member. We will certainly see
और यूको बैंक के लिए तो पीयूष जी का आपने शक्ल देख ही ली है, तो पीयूष जी विल सर्टेनली एंश्योर कि यूको बैंक की तरफ से कोई बहुत ज्यादा प्रेशर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स पे, ब्रांच स्टेट्यूटरी ऑडिटर्स पर ना जाए, सो दैट दे आर इन अ पोजीशन टू जस्टिफाई विद द रिस्पांसिबिलिटी, बिकॉज नाउ द टाइम हैव गॉन। शरद जी, अब टाइम नहीं जी कि आप ब्रांच स्टेट्यूटरी ऑडिट को आप एक पेंशन वाला काम समझे और उसको कंप्लीट 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में कंप्लीट कर ले। मुझे लगता है नाउ वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। Government is expecting a lot, regulators are expecting a lot, and most importantly, the stakeholders are expecting a lot from the chartered accountants. And even in a very small branch, the fraud can take place. Even in the non-fund advances, the fraud can take place. Even in the deposits, fraud can take place. So we have to be very very careful. ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल इस साल में जो एडवांसेज हुए हैं या रिन्यूअल हुआ है उसमें भी जो मेजर वो जो एडवांसेज है, हम क्या करते हैं, जो LFAR में रिक्वायरमेंट है कि इतने से ऊपर के जो एडवांसेज हैं, वी हैव टू गिव द डिटेल्स इन द LFAR। अरे LFAR से क्या होता है, अनिरुद्ध जी इज हियर, पीयूष जी इज हियर, LFAR, राजीव जी इज हियर, हुआ द एक्सपर्ट्स। मुझे लगता है LFAR तो एक बहुत छोटी चीज है। आपको जो ऑडिट करना है वो ऑडिट को आपको अपने हिसाब से करना है। LFAR में आप कुछ भी लिख देते हैं, that may not be of much of the importance। कभी कभी क्या होता है, कोई अकाउंट स्टैंडर्ड से सब स्टैंडर्ड होना है, आपने LFAR में लिख दिया, MOC में दिया नहीं, you will be in the troubled waters। You will, the branch statutory auditor will be in the troubled waters। अगर आपने LFAR में कह दिया कि वो तो सब स्टैंडर्ड है और आप MOC में उसको पॉइंट आउट नहीं कर रहे, then it will be a very very difficult proposition। तो LFAR में अगर आप कुछ भी लिख रहे हैं तो प्लीज एंश्योर कि उसका अगर कोई इफेक्ट MOC में आना है तो वो उस MOC के थ्रू जरूर पॉइंट आउट हो। And I am quite confident that as we are having the presence of the best of the resource person, Piyush Khandelwal ji from Indore, Anirudh Tiwari ji from Delhi, and Rajiv Gupta ji from my commissary Meerut, and of course our leaders Akash ji, Sharad ji, and Sorbadia ji, all, and we are having of course the secretary of CIRC, Lokesh Maheshwari ji from Kota also. So all of us will be richer in the knowledge, and when we will be responding one query, that response, that answer will be useful not only for one, it will be useful for each and everyone, including the resource persons. At times it happens. So let it be very very fruitful discussion. I compliment once again to the team CIRC for this wonderful initiative. Thank you very much. Thank you, Anu sir, and for giving us your guidance as to how two members should proceed for the bank audit, और उनका क्या एक वे आउट और क्या वे होना चाहिए, because as already told by our honorable CCM अनुज गोयल सर कि टफ टाइम है अपने चार्टेड अकाउंटेंट्स के लिए, बट इतना भी टफ नहीं है। अपन को सिर्फ ड्यू डिलीजेंस रखनी है, अपन को जितना अपन टेक केयर कर सकते हैं बैंक ऑडिट्स में। आई नो ये सभी एग्री करेंगे कि अथाह समंदर रहता है बैंक ऑडिट, इवन चाहे छोटी सी भी ब्रांच हो, बिकॉज अपन हर एक ट्रांजेक्शंस वाउच नहीं कर सकते, बट एक मटेरियलिटी कॉन्सेप्ट है, एंड अपन सैम्पलिंग बेसिस पे और जितना मैक्सिमम हो सकता है अपन अपना वो रखें, अपना ध्यान रखें, एंड डू आवर बेस्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स और the main part of our session. So before inviting all the experts, I would just like to हाँ शरद जी। आकाश जी, हमारी जो सेकंड गेस्ट है केदिशा जी, तो आज वो दिल्ली में है, मिनिस्ट्री में है, राइट ज्वाइन नहीं कर पाई है, पर उनका मैसेज आया है, उन्होंने शुभकामनाएं दी हमारे कार्यक्रम के लिए, बहुत अप्रिशिएट किया है और कहा है कि ड्यूरिंग द प्रोग्राम इफ इट विल बी कन्वीनियंट शी विल ट्राई टू ज्वाइन। तो हम लोग उनका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त कर रहे हैं। अब स्पीकर्स का इंट्रो वगैरह आप थोड़ा सा दीजिए। Definitely. So I would like to introduce our first speaker, C. Anirudh Tiwari ji. He is a chartered accountant and having an experience in the field of GST, banking and assurance, and he has also worked with one of the leading big fours, that is EY.
and he has completed his DISA, and he's also a forensic auditor, and he has been doing many ASM audits for the large corporates. As you all know कि 250 करोड़ से ऊपर जितने भी एडवांसेस है जिन भी कंपनीज पे उन पे ASM ऑडिट्स कंपलसरी है. So he has been doing this, and का actually experience है इसमें, and he is an expert in doing an ASM audit. Thank you, sir. We are very much delighted to have you on our panel. Thank you, sir. Now moving towards our second speaker for today's session, CA Piyush Khandelwal ji. Piyush Khandelwal sir is a partner in Khandelwal Kakani and Company. He is a fellow CA member, and he is also a DISA and forensic auditor expert. Prior to joining Khandelwal Kakani and Company in 2012, he was employed with Deloitte Haskins and Sells, Mumbai. He has a post-qualification experience of 16 years with rich experience in various kinds of audit, including bank audit, Ind AS audits, audit of government companies, and GST matters. Thank you, sir, for joining and enlightening our members regarding the various bank audit issues. And हमारे third panelist CA Rajiv Gupta ji, who is also a treasurer of CIRC, and he's been from past many years बैंक ऑडिट्स पे एज ए स्पीकर वो बहुत सारे ब्रांचेस में सेशन ले चुके हैं. थैंक यू राजीव सर एंड फॉर एक्सेप्टिंग आवर इनविटेशन for this CIRC Ask Your Experts Bank Audit Query. So now moving towards our main part, Sharad ji, if you like to first query from your side. Thank you, Akash ji. Now we are going to start our second session, that is of question answer session, query sessions. Now I am going to read the first query. हमारे पास जो सबसे पहली क्वेरी आई है वह एनपीए से रिलेटेड है कि अगर बैंक ने एनपीए की डेट डिक्लेयर की है 23 अगस्त 2021 और इन द ओपिनियन ऑफ द ऑडिटर अगर ये डेट 23 सितंबर 2018 है, यानी कि बैंक से करीब करीब 2 साल 3 साल पहले ऑडिटर को लगता है कि एनपीए हो गया था, तो कैन वी रिवर्स द इंटरेस्ट चार्ज फ्रॉम 23 सितंबर 2018 to 23 August 2021, and how it has to be shown in MOC, and how many places it will affect profit and loss account and balance sheet. हमारे एनपीए डेट से रिवर्स करना पड़ेगा अपने को इफ यू आर चेंजिंग इंटरेस्ट डेट, सॉरी एनपीए डेट. सो जिस दिन एनपीए होगा उसी दिन से सारा इंटरेस्ट रिवर्स करना पड़ेगा. इसमें एक एडिशन मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे अभी पीयूष भाई साहब ने बताया कि एक तो एनपीए डेट से आपको लेना पड़ेगा, तो इसका कंसिक्वेंस क्या होगा कि आपका जो क्लासिफिकेशन है वो भी चेंज होगा, क्योंकि पहले 12 महीने तो वो सब स्टैंडर्ड था, इसके बाद भी अगर उसमें कंटिन्यू वो चल रहा है तो सब स्टैंडर्ड के बाद वो डाउटफुल कैटेगरी में आ जाएगा. Then you will have to further see whether the security is adequate or not, and basis the security you will have to do the provisioning as well. And doubtful part के लिए भी आपका provisioning norm change होगा, और provision बढ़ेगा तो profit and loss में obviously आपका जो एक reversal होगा तो आपकी income कम होगी, provision आपके ज्यादा होंगे, expenses वो बढ़ेंगे. Advances में आपका जो NPA का part था, net advances और gross NPA था, उसमें उसके level में भी changes आएगा. So these changes you need to incorporate in the MOC. वैसे मुझे लगता है इसके अंदर जो जिनकी क्वेरीज है वो ये पूछना चाह रहे हैं कि एक बार अगर बैंक ने एनपीए कर दिया तो क्या मतलब वो हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं, नहीं कर सकते अगर वो गलत डेट पे उन्होंने एनपीए को कवर किया है. तो इसमें मेरा मानना है कि अगर हम बैंक कहीं पर भी कोई नॉर्म्स गलत करता है तो उसको हमें रेक्टिफाई करवाना ही है अपने यहाँ पर, जो भी उसके फाइनेंशियल इम्पैक्ट है. जैसे कि इंटरेस्ट अगर कम डीआई रिवर्सल हुआ है, या जैसे अनुज जी ने बताया कि प्रोविजन वो D1 या D2 में चला जाएगा, तो हमें वो सारी करेक्शन करने की पावर है. इवन दो दे आर कॉल द एनपीए अकाउंट एज एनपीए, बट रॉन्ग डेट आर मार्किंग इज देयर. अदरवाइज तो बैंक क्या करेंगे, सारे के सारे एनपीए 31 मार्च को करेंगे और बोलेंगे हमने तो कर ही दिया. तो हमें बाकी इम्पैक्ट को उसको एनालाइज करना है. तो मेरे ख्याल से क्वेरी शायद ये रही होगी कि एनपीए डेट को अगर रॉन्ग डेट मेंशन किया तो क्या उसको करेक्ट करवाया या उसके इम्पैक्ट को रेक्टिफिकेशन एमओसी के थ्रू करवाना है. नहीं तो मेरा आंसर है यस, करवाना चाहिए. ओवर टू यू सर. शरद सर. यानी
कि कुल मिलाकर अगर ऑडिटर की ओपिनियन में जो डेट ऑफ एनपीए जो है वो बैंक से पहले है, तो इन बिटवीन टाइम का जो इंटरेस्ट है वह भी रिवर्स करना है, और प्रोविजन जो है वह भी चेंज होगा, और कैटेगरी भी चेंज होगी। नाउ अब हम सेकंड क्वेरी की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेरी जो है वो केसीसी से रिलेटेड है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि इंटरनल सर्कुलर ऑफ द बैंक इज एम्फेसाइजिंग that in case of KCC an account will become NPA if and only if no rollover is done in KCC account after 31st March 2019. They have devised their unique interpretation of RBI circular to ascertain the NPA status in case of agricultural advances. Their internal circular is enclosed. मेरे पास तो है पर मैं उसकी प्रिंट नहीं निकाल पाया। अगर क्वेरिस्ट अगर यहाँ पर होंगे और वो फर्दर इसको इलेबोरेट करना चाहेंगे तो वी विल ओपन हिज माइक। पर मैं समझता हूँ शायद इनकी क्वेरी काफी कुछ तो हमारे सामने क्लियर हो गई है। मैं आगे और पढ़ता हूँ। However, if we go by the ICAI guidelines, the account will become NPA if there is no rollover after 31st March 2020. Bank higher authorities are not agree. और इसी से सिमिलर क्वेरी एक और आई है। शायद दोनों की दोनों क्वेरी जो है अलग अलग क्वेरिस्ट है, पर मोटिव दोनों का सेम दिख रहा है कि व्हाट इज कट ऑफ डेट आफ्टर विच रीपेमेंट नॉट रिसीव्ड इन केसीसी प्रिंसिपल और इंटरेस्ट कैन बी मार्क्ड एज एनपीए। यानी कि जो हमारे क्वेरिस्ट हैं वो पूरी की पूरी वर्किंग करने की बजाय एक शॉर्टकट फार्मूला पूछना चाह रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से कि एक पर्टिकुलर डेट बता दीजिए कि अगर उसके बाद पैसा केसीसी अकाउंट में नहीं आया तब उसको सिंपली एनपीए मान लें। नाउ ओवर टू आवर एक्सपर्ट्स टू एक्सप्रेस देयर व्यूज। सर भाई मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा कि जो जी, आपने जी। कहा ना कि अब केसीसी से रिलेटेड थोड़ा सा मेरा एरिया वाइज है ये, तो जो बैंक के इंटरनल सर्कुलर से हम बेसिकली आरबीआई बेस पे हम ऑडिट करते हैं, तो आरबीआई के जो मास्टर सर्कुलर है, डायरेक्शंस है, वो हमारे ऊपर एप्लीकेबल रहते हैं। जहाँ तक एग्रीकल्चर एडवांसेस का केस है तो आरबीआई ने बहुत क्लियर बोला है, अगर आप देखें कि पेज नंबर 14-15 जो मास्टर सर्कुलर 1 अक्टूबर 2021 को आया है कि 1 क्रॉप और 2 क्रॉप जो कि पहले से भी चलता रहा है, अगर ओवरड्यू चल रहा है 1 क्रॉप या 2 क्रॉप लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन क्रॉप में और शॉर्ट टर्म में, लेकिन कहीं पर भी क्रॉप का ड्यूरेशन कितना होगा उसके लिए आरबीआई साइलेंट है। उन्होंने पावर दे दी एसएलबीसी को, तो एसएलबीसी एज ए फाइनल अथॉरिटी जो डिसाइड करता है। तो जो एक हमारे मेंबर शॉर्टकट चाह रहे हैं कि कितने टाइम में हो जाएगा, तो डिपेंडिंग अपॉन की उनका सिंगल क्रॉप है ना, मोनोक्रॉप है या डबल क्रॉपिंग पैटर्न पे है और क्रॉप लॉन्ग है शॉर्ट है, और उस पर्टिकुलर स्टेट के एसएलबीसी ने क्या बोला है, तो वो शॉर्टकट कहना थोड़ा मुश्किल है। फिर भी समाओ आप इसे अगर आप चेक करेंगे आईसीआई के गाइडेंस नोट में भी एग्जांपल दिया हुआ है, तो मेरा कहना है कि वो गो थ्रू करें पर्टिकुलर एसएलबीसी के इलस्ट्रेट नॉर्म से और सेकेंडली हमारा आईसीआई गाइडेंस नोट से। दूसरा जहां तक इंटरनल सर्कुलर का सवाल है, इंटरनल सर्कुलर तो बैंक देते हैं, और अगर मैं सही हूं तो शायद ये पीएनबी बैंक का केस होगा, तो वो पीएनबी बैंक में भी और कुछ और बैंकों में भी, तो वो रोल ओवर के हिसाब से वो कभी कभी 4-4, 5-5 साल तक भी वो कहते हैं जी इंटरेस्ट तो सर हो रहा है इसलिए इट्स अकाउंट ओके। तो मेरा तो क्रॉस क्वेश्चन उनसे हो जाता है, ठीक है जी इंटरेस्ट तो आ रहा है, अब आप ये बताइए कि आप मुझे भूल जाइए, आप ये बताइए इस बंदे को एनपीए आप कब करोगे, मतलब आप इससे पैसे वापस कब लोगे, लेने भी है या नहीं लेने। तो अभी बहुत क्लियर है सर इसके अंदर, जो वो इंटरनल सर्कुलर आप उसको इग्नोर कीजिए, और बाकी अगर एसएलबीसी और मास्टर सर्कुलर के हिसाब से वो एनपीए हो रहा है तो उसे एनपीए मार्क कीजिए। और ओवर 2 की जो स्टेचुटरी ऑडिटर है वो इसको कैसे कंपाइल करते हैं, कैसे देखते हैं, आपके लिए ब्रांच लेवल पे एडवाइस यही है कि आप बोल दीजिए जहां पर होगा ऊपर सेंट्रल ऑडिटर देख लेंगे। फिलहाल हमारे हिसाब से तो ये एनपीए मार्क होना चाहिए, हम इसको मार्क कर रहे हैं। बाकी हमारे पीयूष जी है, पीयूष जी से मैं बोलूंगा कि पीयूष जी जरा एज एन सेंट्रल ऑडिटर इस पर रोशनी डालें। सर आपकी बातों से पूरा इत्तेफाक रखते हैं हम, फुल्ली एग्रीड टू व्हाटएवर यू हैव सेड। और इसमें एसएलबीसी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरबीआई ने अपने सर्कुलर में एसएलबीसी पे सब कुछ छोड़ रखा है, और आरबीआई ने अपने सर्कुलर में ये भी बोल रखा है कि बैंक्स को ड्यू डेट आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बट वो एसएलबीसी के ऊपर से ही हो सकता है। तो क्रॉप सीजन के बेसिस पे जो भी एसएलबीसी ने डिफाइन किया है, हर ऑडिटर को देखना पड़ेगा वेदर द लोन इज एनपीए और नॉट। ये बहुत डिफिकल्ट टास्क है, टीडीएस है, पर करना पड़ेगा। कोई और इसमें एडिशन, अनुरुद्ध जी कोई एडिशन, या हम आगे बढ़े? यस, इसमें बिल्कुल राजीव जी ने बहुत अच्छे तरीके से बहुत बारीक चीजों को कवर किया।
तो इसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट सिर्फ यही है कि आपको आइडेंटिफाई सबसे पहले ये करना है कि मेरा ये अकाउंट ड्यू कब हो रहा है, मेरी ड्यू डेट कब है जब मेरे को प्रिंसिपल या इंटरेस्ट की रिपेमेंट आना है। सबसे पहले वो आप अपने सैंक्शन लेटर को पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा कि ये मेरा शॉर्ट ड्यूरेशन है या लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है। अब शॉर्ट ड्यूरेशन लॉन्ग ड्यूरेशन के हिसाब से आपको वहां पे इमीडिएट ये भी आपके ऑडिटर को चेक करना पड़ेगा कि आपकी शॉर्ट ड्यूरेशन को वो 6 महीने बोल रहे हैं या 1 साल बोल रहे हैं या 2 साल बोल रहे हैं, कितना पीरियड वो डिफाइन कर रहे हैं कि वो शॉर्ट कहेंगे या कितने को लॉन्ग कहेंगे। वो आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप वो आइडेंटिफाई करेंगे, ओनली बेसिस दैट आइडेंटिफिकेशन you will be able to verify that my account is overdue for particular period as per IRAC norms or not. IRAC norms पे तो आप तभी आएंगे जब आपको पता हो कि मेरे शॉर्ट ड्यूरेशन कितना है और लॉन्ग ड्यूरेशन कितना है। तो वो आपको अपने सैंक्शन लेटर में बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है। इसके बेसिस में सेम वही प्रोसीजर फॉलो होगा 2 क्रॉप सीजन और 1 क्रॉप सीजन का। और वो जैसे ही आप ऐड करेंगे, अगर उसके बाद भी आप देख रहे हैं कि रिपेमेंट नहीं है, सो यू कैन सिंपली रेड फ्लैग और उसको आप एमओसी में एनपीए के कैटेगरी में डाल सकते हैं। अनिरुद्ध जी, कई मेंबर्स जो हैं बड़ा सिंपल तरीका चाहते हैं। वो लोग ये बताते हैं कि भाई हम लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप क्या है, शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप क्या है, क्या मोरिटोरियम है, कितने पीरियड में ये एनपीए है, हम इस सब में नहीं जाएं और हम अगर एक कोई सिंपल तरीका अडॉप्ट कर लें कि सैंक्शन लेटर में ये देख लें कि ये कब ड्यू हो रही थी, है ना। मान लीजिए कि उन्होंने कहा कि भाई सितंबर में और मार्च में ड्यू होगी, या किसी केस में कह दिया है कि भाई एवरी ईयर सितंबर में ड्यू होगी। तो अगर उन्होंने कहा कि भाई एवरी ईयर सितंबर में ड्यू होगी, तो हम समझ लेंगे कि लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप है। और साल में अगर 2 बार ड्यू होने की बात की तो हम समझ लेंगे कि ये शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप है। और बैंक ने मॉरिटोरियम और ये सब फिक्स करते समय सब कुछ कंसिडर कर लिया। अब हमको तो सिर्फ ये देखना है कि अगर साल में 2 बार किस्त आना है और 2 किस्त नहीं आई है तो ये सब स्टैंडर्ड हो गया, या साल में 1 किस्त आना है और वो किस्त नहीं आई है तो वो सब स्टैंडर्ड हो गया। हम सिंपल तरीके से हम अगर चलना चाहें तो whether this way is correct way? Yes, perfectly all right. शरद जी, इसमें जो है ना, अगर आप इतना शॉर्टकट चाह रहे हैं तो मैं एक और चीज दे पाऊंगा। मेरे पास तो यूपी में मैं थोड़ी सी वर्किंग करता हूँ, तो यूपी के अंदर बैंक ऑफ बड़ौदा एसएलबीसी में जो लीड बैंक है अपना, तो उन्होंने जो अपना लेटेस्ट जो लास्ट उनका सर्कुलर था वो दिया हुआ है। उसका पेज नंबर 97 पे आप देखिए तो एक इलस्ट्रेशन है वहां पर, और अगर वहां से चलेगी तो डेट ऑफ फाइनेंस से लेके मोटा मोटा 3 ईयर कवर कर रहा है, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन। तो 36 मंथ्स को आप एक क्राइटेरिया मान सकते हैं कि 36 मंथ से ऊपर जो भी है वो तो आपको कंसिडर करना ही है। उससे नीचे आप जाएंगे तो आईसीआई गाइडेंस 21 मंथ्स का भी एग्जांपल देता है, 27 के भी आपको एग्जांपल मिलेंगे। लेकिन जैसे कहा कि भाई एक्चुअली तो क्रॉप पे और पर्टिकुलर एरिया पे किस तरीके, क्योंकि एरिया वाइज भी इसमें क्या होता है, एसएलबीसी के अंदर भी है ना डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी भी बनती है कंसल्टेटिव, उसके अंदर ब्लॉक लेवल कमेटी होती है। तो अगर हम बहुत डिटेल में जाएंगे तो हमें वहां तक जाना पड़ेगा। बट इफ यू फाइंडिंग अ शॉर्टकट तो आप उसको 36 मंथ्स, मेरी तरफ से एडवाइस है 36 मंथ्स से अबव अगर डेट ऑफ फाइनेंस के बाद अगर है तो आप उस अकाउंट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक चीज और जोड़ूंगा मैं सर, इसमें लेवल एसएलबीसी नेचुरल कैलामिटीज को लेके भी रिलैक्सेशन देता है कई बार, तो वो भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा एनपीए करने से पहले। 3 साल तो ठीक है, मोटा मोटा हो जाता है, क्योंकि उसमें कैलामिटीज वगैरह भी आके आप छोड़ देंगे तो भी 3 साल एक सफिशिएंट पीरियड हो जाता है। पर ये भी ध्यान रखिए, कोई कंटिन्यूस यदि नेचुरल कैलामिटी में यदि आ रहा है तो उसको भी आपको छोड़ना पड़ सकता है एनपीए करने से। यस, एक इशू और आता है केसीसी अकाउंट्स या एग्रीकल्चर के टर्म लोन वगैरह के केसेस में। बैंक ये कहती है कि पिछले साल हमारा अकाउंट जो था स्टैंडर्ड था, अब आप उसके आगे बढ़िए और इस साल में क्या डेवलपमेंट है उसे देखिए। और कुछ ऑडिटर्स का ये कहना है कि नहीं, हम ये नहीं देखेंगे कि पिछले साल तक की पोजीशन क्या थी, हम तो ओवरऑल जब से अकाउंट शुरू हुआ तब से सारी पोजीशन देखिए। मान लीजिए एक एग्जांपल मैं बताता हूं कि मान लीजिए 5 साल पहले से अगर इंस्टॉलमेंट शुरू हुई है तो कई ऑडिटर क्या करते हैं कि 5 साल पहले जिस तारीख से इंस्टॉलमेंट कमेंस हुई थी उस पीरियड से लेकर आज तक कितनी इंस्टॉलमेंट आ जानी चाहिए थी, क्या इंस्टॉलमेंट फिक्स हुई थी, इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाइड बाय ईएमआई इक्वल टू कितना अमाउंट हुआ, मतलब खाते में कितना अमाउंट आज तक पूरे टेन्योर में आ जाना था और पूरे टेन्योर में कितना अमाउंट आया। अब कितना आ जाना था उसमें से कितना आया ये माइनस करने के बाद शॉर्टफॉल निकाल लेते हैं। शॉर्टफॉल निकालने के बाद फिर कितनी ईएमआई थी उससे उसको डिवाइड कर लेते हैं
वो डिवाइड करने के बाद अगर 3 से ज्यादा है तो उसको सब स्टैंडर्ड मान लेते हैं, 5 से ज्यादा है तो उसको और अगर और हायर कैटेगरी में मान लेते हैं। तो क्या ये पैटर्न एडॉप्ट करना चाहिए ऑडिटर को कि भाई पूरा ओवरऑल सिनेरियो जिस दिन से लोन दिया तब से लेकर आज तक देखें और उस हिसाब से कैटेगरी डिसाइड करें, ना कि पिछले साल क्या कैटेगरी थी उसके बाद आगे प्रोसीड। सर ओवरड्यू से डिसाइड होगा आपका। आयरेक हमेशा ये कहता है कि आपका ओवरड्यू ही डिटरमाइन करेगा कि खाता एनपीए होना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो उसी से कहने का मतलब ये है कि जो पीरियड पिछले ऑडिटर के ज्यूरिसडिक्शन में चला गया उसमें भी मैं अंदर जाकर शुरू से लेकर आज तक अकाउंट का असेसमेंट करूं, या पिछले साल तक जहां तक ऑडिटर ने ऑडिट कर दिया उसके बाद का ही असेसमेंट करूं? ये थोड़ा सा आज लोगों की का डेट पूछना है। में जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ तब मैं देखूंगा कितना ओवरड्यू है, और ओवरड्यू पीरियड यदि 3 से ज्यादा मतलब 90 डेज से ऊपर आ रहा है तो जहां पे 90 डेज खत्म हो रहे हैं वहीं पे जाके उसका एनपीए डेट हो जाएगा शरद टर्म जी लोन के केस में। बिल्कुल। शरद जी मतलब इसमें हमको पिछले ऑडिटर के पीरियड में भी अगर इंटरफेयर करना है तो हम कर सकते हैं, विशेषकर एग्रीकल्चरल लोन में जहाँ 90 दिन का कंसेप्ट नहीं और पीछे नहीं 6 सर, महीने 12 महीने एग्रीकल्चर का में ये कंसेप्ट है। शरद भाई साहब, जो आपका एग्जाम्पल है वो एग्रीकल्चर एडवांस के लिए फिट नहीं है। फिट नहीं है। शरद भाई साहब, हाँ, मैं भी यही बोलने वाला था। जी शरद भाई जी साहब, जो जी आपका जी जी। एडवांस आपका एग्जाम्पल है ना वो जनरल टर्म लोन के लिए दिया ठीक है। है, हाँ लेकिन कॉमर्शियल जी टर्म जी लोन के लिए जी जिसके लिए सर 90 डेज के नॉर्म से लगा रहे हैं और अनुरुद्ध जी भी बताएंगे ऐसे डिवाइड करना है वो ठीक होगा, लेकिन ये एग्रीकल्चर एडवांस पे फिट नहीं बैठेगा क्योंकि उसमें के अंदर तो क्रॉप बेस्ड चलेगा वो आपका, और तो उसमें एक पीरियड ही का जो इंस्टॉलमेंट तरीका में था। पैसा देना रहता है ना सर एग्रीकल्चर एडवांस जनरली। शरद जी मेनली बिल्कुल। क्वेश्चन यही था कि पिछले वाले ऑडिटर के ज्यूरिसडिक्शन में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। मैं शरद जी मतलब उसका अगर जवाब देता हूँ, मैं जवाब जी देता जी हूँ जी आपको। जी 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 अनुरुद्ध जी, जी अनुरुद्ध जी। तो जो आपने केस लिया है वो आप एग्रीकल्चर एडवांस का अगर आप हटा देते हैं, उसके अलावा जितने भी तरीके के आपके टर्म लोन हैं उन सारे जी टर्म जी लोन जी को आपको सिंस वेरी स्टार्ट देखना है, पिछले ऑडिटर ने क्या किया वो आप भूल जाइए। क्योंकि इन केस अगर उसमें डिफॉल्ट होता है जी तो नोबडी इज गोइंग टू आस्क कि यार पिछले ऑडिटर ने क्या चेक किया था। ही विल आस्क कि आपने अपने पीरियड में क्या देखा है, आपने अपने सैंपलिंग में एलएफएआर में जो अकाउंट डाला है कि मैंने इसको चेक किया है, तो आप मुझे बताओ आपने क्या देखा है। और सिंपल जैसा आपने एक्सप्लेनेशन दिया, बैंकर यही बोलता है कि भाई साहब पिछले ऑडिटर ने इसको ओके किया था, उस साल से अभी तक देख लो मेरी इंस्टॉलमेंट मिली हुई है। राइट, हो सकता है पिछले ऑडिटर ने सैंपलिंग में ही ना लिया हो उस अकाउंट को, ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल तो सही, आप जब भी अपने बिल्कुल फाइल सही। को लेते हैं, जब भी आप अपना सैंपल सिलेक्शन करते हैं, तो उस सैंपल सिलेक्शन में यू विल हैव टू बी वेरी डिलिजेंट एंड यू हैव टू पुट योर थोरो स्टडी आउट देयर। सो यू स्टार्ट विद वेरी फ्रेश कि आपने ये मेरा सबसे पहली इंस्टॉलमेंट कब ड्यू हो रही थी और तब से लेके आज तक मेरी टोटल कितनी इंस्टॉलमेंट और प्रिंसिपल इंटरेस्ट कितना आज तक ड्यू हुआ है, अलॉन्ग विद दैट मेरे चार्जेस वगैरह भी कितने ड्यू हुए हैं वो सारे आप ऐड कर दो। विद दैट यू हैव टू कंपेयर कि टोटल कितना क्रेडिट आया है। क्रेडिट ऑल्सो यू हैव टू सी द जेन्युइननेस इन द क्रेडिट पार्ट कि मेरा जेन्युइन क्रेडिट कितना आया हुआ है। देन यू विल लेस कि टोटल कितना आना चाहिए, जेन्युइन क्रेडिट कितना आया है। फिर जो डिफरेंस अमाउंट आया उसमें से आप इंस्टॉलमेंट की अमाउंट को से डिवाइड करोगे। इफ दैट इज कमिंग मोर देन 3 देन यू कैन क्लासिफाई एज ए सब स्टैंडर्ड। बट केसीसी केस में, एग्रीकल्चर केस में बिल्कुल अलग तरीका होता है, तो वहां पे ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अदर देन केसेस आपको ये फॉर्मूला अच्छे से लग जाएगा और आपको पुराने पीरियड में भी अच्छे से ध्यान देना है। जी 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 जी। मेरे ख्याल से इस क्वेरी का जो है काफी सेटिस्फैक्टरी आंसर आया है और काफी सारे लोग सुन रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये क्वेरी जो है जनरल पब्लिक की रहती है और इससे काफी बेनिफिट मिला होगा सभी को। अब मैं आज शरद की जी हमारी एक चौथी मिनट क्वेरी में, पर आता हूँ। शरद जी 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 इसी से लिंक में मेरी एक क्वेरी भी है। जी मान लो कि जी बैंक ने एक फाइनेंस किया और उसको जो फाइनेंस किया वो केसीसी टर्म लोन के अंदर किया, मतलब टर्म लोन एग्री करके एक स्कीम है पीएनबी के अंदर, उसने फाइनेंस किया। फाइनेंस में जो उन्होंने सिस्टम बनाया वो बनाया कि 6-6 महीने के उन्होंने इंस्टॉलमेंट कर दिया। सैंक्शन लेटर में जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है ग्रोविंग ऑफ सीरियल्स, ये करके पर्पस था। जब उस लोन को हम देख रहे हैं तो लोन जो जिस पर्टिकुलर पर्सन के नाम था उसने डाइवर्ट करके किसी और को दे दिया लोन। अब उस कंडीशन के अंदर इस पे केसीसी के नॉर्म लगाएंगे क्योंकि उसने स्पेसिफाइड टर्म लोन किया है, या फिर उसमें अपन सिंपल टर्म लोन के जो नॉर्म्स है वो अपन अप्लाई करेंगे?
अच्छा, एक बात और थोड़ा सा लोकेश जी बता दीजिए कि बैंक ने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसको सीसीओडी में कंसीडर किया है या टर्म लोन में कंसीडर किया है, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण। टर्म लोन। लोकेश भाई, इसमें बैंकर अपने सैंक्शन लेटर में ये भी स्पेसिफाई करता है कि एग्री लोन है या नॉर्मल बिजनेस लोन है। उसने एक लिखा है very कि ग्रोविंग ऑफ सीएरएल एग्री, सॉरी, टर्म एग्री लिखा हुआ है। एग्री लिखा हुआ है। अगर एग्री लिखा हो तो फिर एग्रीकल्चर नॉर्म्स बिल्कुल अप्लाई होंगे ना उस पे। सर नॉर्मल केस अच्छा अनिरुद्ध जी, एक मिनट। जी। सर आयरेक के अंदर एग्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। यस कुछ यस। फार्म क्रेडिट करके चीजें हैं जो एनेक्सर 2 में दी हुई हैं, उसके लिए जो अभी हम बातें कर रहे हैं वो एप्लीकेबल होगा। उसके बिल्कुल। अलावा जितनी भी चीजें हैं वो नॉर्मल आयरेक के जैसी ही चलेंगी, जिसमें 90 डेज की डेलिक्वेंसी आपको देखनी पड़ेगी। बिल्कुल एग्री एग्री सर। यूजली इज द राइट आंसर कि जो एनेक्सर 2 दिया हुआ है आयरेक के अंदर जो भी 1 अक्टूबर वाला है, तो उसको आप लिस्ट देखे, हार्डली वो 1.5 पेज की लिस्ट है। दे आर ओनली कवर द 1 crop 2 crop सीजन, अदरवाइज अदर टर्म लोन ऑफ इवन दो दे आर एग्रीकल्चर बट 90 डेज नॉर्म से दिया। अब मैं अगली क्वेरी लेता हूं, जो 4th नंबर की क्वेरी है। एक कस्टमर ऑफ ए ब्रांच रिसीव्ड पेडी फ्रॉम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया फॉर जॉब वर्क एंड आल्सो इन देयर बुक्स दे आर डिस्क्लोजिंग दैट एज स्टॉक। व्हाट टू डू विथ दिस इन LFAR? क्लाइंट डिस्क्लोजिंग स्टॉक व्हाइल कैलकुलेटिंग DP फॉर CC। शरद जी एक बार रिपीट करें प्लीज। सर पहली थोड़ा सा मुझे भी इसमें कंफ्यूजन लग रहा है कि मैं बताऊं, मैं अगर क्लेरिफाई जॉब करता हूँ। वर्क, जी जो कस्टमर है उसके पास एज ए जॉब वर्क मटेरियल आया है एंड वो उसको अपनी बैलेंस शीट में एज ए स्टॉक ट्रीट कर रहा है एंड वो अपनी डीपी कैलकुलेशन में भी उसको एज ए स्टॉक ही ट्रीट कर रहा है, वेयर एज वो जो मटेरियल है वो उसको एज ए जॉब वर्क मिला है। सो व्हाट शुड बी दी, मतलब ऑडिटर का क्या स्टैंड होना चाहिए? ये तो गलत ही है ना पूरा। जो मेरा स्टॉक ही नहीं है उसको मैं कैसे राइट। DP में ले सकता हूँ? इसको तो ये तो NPA करा I दो। think ये तो अकाउंटिंग AS2 के वॉल्यूशन हो गया सर। एंड हेड्स ऑफ टू ऑडिटर, उसने ये आइडेंटिफाई करा है, उसने ढूंढ के निकाला है कि एक्चुअली ये आपका स्टॉक नहीं है, दिस इज एन जॉब वर्क। आई थिंक वो अच्छा, तो अभी क्लियर सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अकाउंट्स में वो किस प्रकार से इस चीज को लेके आया। ये भी एक अपने आप में सोचने वाली बात है कि जो स्टॉक आपका है नहीं, तो क्या जर्नल एंट्रियां पास की होगी, क्या अकाउंटिंग एंट्रियां पास की होगी, क्या करके वो किस तरह से बुक्स में लेके आए, और इसको अपनी बुक्स में क्लोजिंग स्टॉक दिखाने से उसका नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कितना इन्फ्लेट हुआ होगा, उसके ट्रू एंड फेयर व्यू की क्या स्थिति रही होगी। ये भी वो पूछने तो वाली बात है। जो जॉब वर्क में आया होगा उसे परचेज अकाउंट में दिखा दिया होगा, उधर से स्टॉक उड़ा दिया होगा। केवल स्टॉक स्टेटमेंट में दिखा दिया हो वहां तक तो समझ में आता है, बुक्स में इस तरह का करना, उसके बाद उसकी बुक्स के आप अकाउंट का ऑडिट हो जाना, तो बड़ा ही सीरियस मैटर है ये। तो इसमें तो LFAR की जगह MOC डायरेक्ट देना पड़ेगा। LFAR में तो मेंशन होगा ही होगा, MOC भी जाएगा। would be more appropriate। राइट सर, राइट। क्योंकि जो है डीपी जो है उसकी मेरे ख्याल से रिड्यूस हो जाएगी। डीपी रिड्यूस होने के बाद ये ओवरड्रान हो जाएगा ये अकाउंट वैसे। Also can it be treated as an fraud because इसमें बुक्स और अकाउंट से पूरी फज की हुई है, मतलब फ्रॉड भी कर सकते हैं सर, बट देखना पड़ेगा उसको कि किस तरह का इंटेंशंस है। बाकी सिक्योरिटी नहीं है तो डायरेक्ट लॉस में भी ले जा सकते हैं। और फ्रॉड तो एक्चुअली बैंक का प्रेरोगेटिव है फ्रॉड डिक्लेयर करना किसी अकाउंट को, हम ज्यादा से ज्यादा लॉस में ले जा सकते हैं। राइट सर। आकाश भाई, इसमें फ्रॉड में क्या हुआ, पीछे हमारे एक मेंबर थे, उन्होंने मतलब 2-3 साल पुरानी बात है, तो उन्होंने बड़ी हिम्मत करके सब चीजें फ्रॉड में सब डाल दिया। अच्छा। उन्होंने समझ में आया वो 3 करोड़ से ऊपर का अगर फ्रॉड होगा तो उसमें रोज CBI आपको भी बुलाता रहेगा। उन्होंने कहा भैया बाकी MOC तक तो ठीक है, फ्रॉड के लिए एक बार चेक कर लो, ऐसा ना हो ऑडिट खत्म हो जाए और आपकी तारीख लगती रहे। मतलब फ्रॉड से पहले एक बार जरा डिटेल करें। शरद जी, इसमें ये भी देखने वाली बात है कि जैसे स्टॉक है उसका पेड स्टॉक जो है वो तो खत्म हो जाएगा, स्टॉक के अगेंस्ट तो डीपी नहीं मिलेगी, प्रोबेबली उसने बुक डेट के अगेंस्ट भी लिया रहा होगा, तो बुक डेट के अगेंस्ट डीपी शॉर्ट हो जाएगी और डीपी शॉर्ट होने की वजह से ओवरड्रॉन होगा और उसमें आप MOC में उस हिसाब से दिखा सकते हैं।
ज्यादा शॉर्ट हो आप जाए तो NPA हो उसको आप लॉस में मतलब ले जा सकते हैं इफ यू हैव प्रोवाइडेड कि उसमें सर, प्रोवाइडेड कि उसमें कोलेटरल भी कुछ भी ना दिया हो उसने। हाँ क्योंकि अभी आधी क्वेरी आपने बताई है तो उसके हिसाब से पीयूष जी ने भी बिल्कुल सही बताया, लेकिन वही है कि जब आप पूरा डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है पिक्चर आपको कुछ और भी दिख जाए। और कुछ और निकल जाए, राइट। कोई कोलेटरल निकल आए। तो ये क्वेरी निर्मेश राठी जी की थी। रेज हैंड में निर्मेश राठी जी हैं क्या आकाश जी? नहीं, रेज हैंड में तो ठीक है, फिर हम समझते हैं कि क्वेरी का जितने फैक्ट्स जो डिस्क्लोज हुए थे उस हिसाब से क्वेरी का हमने प्रॉपर रिस्पांस दे दिया है। यस सर, मेरी एडवाइस है, जो हैंड रेज कर रहे हैं, जो मेंबर अवेलेबल है लाइव में, पहले उनको ले लिया जाए कुछ, अगर आप बिल्कुल। क्योंकि बाकी आप आकाश जी, मैं देखता हूँ सर। किसी एक को रेज हैंड वाले को आप ओपन कर लो, अगर अवेलेबल है तो ठीक, अदरवाइज आप डाउन हैंड कर दीजिएगा उसका, तो हमें पेंडिंग नहीं दिखेगा। विधि दोषी जी, विधि मैम, आर यू देयर? विधि दोषी जी, आई थिंक इज नॉट देयर। देन केहव भट्ट जी, केहवा भट्ट, आई थिंक इज इनको ऑल्सो अनम्यूट करने का बोल दीजिए एक बार, म्यूटेड है सब। जस्ट विधि दोषी मैम, आप अनम्यूट ही है मैम, आई थिंक नहीं है। अतुल मेहता जी, I have a query. yes sir, yes sir, you are audible. In KCC accounts, we have found in the past, in previous years, the branches deposit, the accounts are cash deposit होता है और same day जो है उसको advance हो जाता है पूरा अमाउंट। 2 लाख का अमाउंट है, 2 लाख आता है और 2 लाख चला जाता है सेम डे। अब इसकी जेन्युइननेस, अभी अनिरुद्ध तिवारी जी ने एक जेन्युइननेस के ऊपर पॉइंट रेज किया था, वेदर क्रेडिट्स आर जेन्युइन और नॉट, हाउ ऑडिटर कैन वेरीफाई दिस जेन्युइननेस ऑफ द ट्रांजैक्शन? माय फर्स्ट क्वेश्चन। एंड व्हाट इज द रोल ऑफ ऑडिटर इन रिपोर्टिंग if he finds that there is no denomination mentioned in the pay slips? What role an auditor has to do? This is my question. Is that clear to you? The first Yes, part sir. clear, second एक बार आप बोले, second part आपने क्या बोला? सेकेंड पार्ट, ये जेन्युइनिटी कैसे हम लोग उसको करेंगे, ऑडिटर कैसे देखेगा जेन्युइन है क्रेडिट? क्योंकि हमें तो लगता है कि एक ही दिन में 50 हमने निकाले, 50 उसने डिपॉजिट्स की और 50 को सैंक्शन कर दिया और उसमें लिख दिया केसीसी में। सर एक सिंपल सी अगर आप बात देखेंगे कि मेरे खाते में बस कैश आ रहा है, एडवांस जा रहा है, सिर्फ यही तो हो रहा है और कुछ हो ही नहीं रहा, तो इसे आप क्या मानेंगे? सर मैं यही तो पूछ रहा हूँ। मेरे को तो लगता है कि ये ब्यूरो बिल्कुल एक उसको किया। जो इंटरनल पॉलिसी भी देख लीजिए एक बार बैंक का क्या बोलता है इसके ऊपर। जैसे कुछ बैंक का पॉलिसी है कि एक दिन तो कम से कम अकाउंट में रहना चाहिए पैसा। पर ये अकाउंटिंग बड़ौदा में कोई अगर ऑडिटर बैंक ऑफ बड़ौदा का सेंट्रल ऑडिटर बैठा तो बता सकता है, क्योंकि ब्रांच मैनेजर के पास तो कोई पॉलिसी होती नहीं है। राजीव जी शायद आपके पास कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा का था, इफ यू कैन ऐड समथिंग। बैंक ऑफ बड़ौदा का जरूर है, लेकिन मेरे ख्याल से देखिए काफी बैंक जो है ना, जैसे पीयूष जी ने बोला, लेकिन अभी तो मैक्सिमम बैंक क्योंकि सबको अपने अकाउंट बचाने हैं तो सेम डे क्रेडिट को और डिपॉजिट को वो अलाउ करते हैं। इनफैक्ट आरबीआई ने भी, जैसे मैंने, हाँ बिल्कुल करते हैं सर, लेकिन जहां तक जेन्युइननेस का सवाल है उसके ऊपर 2 पॉइंट मैंने उसमें रखे हुए हैं कि आप ये जरूर चेक कीजिएगा। अगर आप देखें यहाँ पर आईसीआई गाइडेंस नोट के अंदर, तो दोनों जगह ये चीज मेंशन की हुई है कि भाई आपकी बुक एंट्री ना हो सर। और जैसे आपने कहा डिनोमिनेशन चेक कर लिया, हमने बाकी चीज चेक कर लिया, सिग्नेचर नहीं मिल रहे हैं, अगर हमारे सफिशिएंट नंबर ये बन पा रहे हैं कि ये प्योरली बुक एंट्री है, तो हम उसको अवॉइड करेंगे और ये मानते हुए चलेंगे कि अभी ये अमाउंट डिपॉजिट नहीं हुई। अकॉर्डिंगली आप उसके लिए फिर एनपीए की बाकी प्रोविजन चेक करके उसको डालें। तो ये सब चीजें क्लियर है। बताते हैं, इन मोस्ट ऑफ द केसेस there is no mentioning of denominations, neither there is a signature on the pay slips of the depositor or the person who deposits the money, not necessarily the loan holder. कोई डिनोमिनेशन नहीं होता, दे आर ब्लैंक। अब इसमें और मैं थोड़ा और प्रैक्टिकल हो जाता हूँ, कई बार तो मैनेजर मान भी लेता है ये बुक एंट्री है, बताइए ऐसा, अगर मैं सही हूँ तो कुछ जी है ना सर। मतलब अपार्ट फ्रॉम दैट ही बोल रहा हूँ मैं आपको, ऐसा भी कुछ मैनेजर बोल देते हैं एक मैं और ये तो ऊपर से आ गई इंस्ट्रक्शन और ऐसा करना पड़ा और ये और वो,
ठीक है, अब बताएं सर। सर मैं एक ऐड ऑन कर हाँ मैं Application- एक ऐड ऑन करना चाहूंगा इसमें। कल हमारे एक्सपर्ट्स ने ये इसके एक तरीका बताया था कि सर पैसा तो आ सकता है, आप उसको तो रोक नहीं सकते हो, बट जब पैसा वापस से निकल रहा है आपको वो ट्रांजेक्शन एक बार आप जरूर वाउच कर लीजिए कि जो जिससे निकल रहा है, जो पेपर है उसकी क्या वाउचर है या क्या चेक से निकल रहा है या किस तरीके से हो रहा है। आप उसकी जेन्युइनिटी चेक करें तो आपको जरूर पता लगेगा कि ये इट्स हाँ, मेयर उसने कुछ कैश स्लिप तो साइन करा होगा ना पैसा राइट। निकालने के लिए। Obviously. लेने कैश के तो टाइम हाँ देने के टाइम पे तो प्रॉपर डिलीजेंट करते हैं ना हाँ कौन सा हाँ लेना हाँ है। ले तो अपन सकते हैं, कोई भी एनी XYZ कैन गो एंड डिपॉजिट दैट अमाउंट, बट वापस वो पैसा निकला होगा तो उसका ट्रांजैक्शन एक बार जरूर चेक कर लीजिए कि वेदर इट्स अ जेन्युइन और नॉट। उसका खुद का साइन लगेगा सर, अकाउंट हाँ होल्डर का। कल हमारे एक एक्सपर्ट ने बताया भी था कि डिपॉजिट करने में तो कोई दिक्कत नहीं है, पर डिपॉजिट करने के बाद जब पैसा वापस निकालना है केसीसी जैसे अकाउंट्स में, तो एक अप्राइजल रिपोर्ट भी बनाना पड़ती है बैंक को, और उसके बाद जो भी इलिजिबिलिटी एंटाइटलमेंट वगैरह होते हैं तभी निकल सकता है। तो अगर सीबीएस में हम जाकर देखें कि सीबीएस में डिपॉजिट करने का समय जो है उसके 10-5 मिनट बाद ही विड्रॉल करने का समय है, तो हम ये समझ सकते हैं कि ये केवल बुक एंट्री है और विदाउट मूवमेंट ऑफ कैश है। और बाकी जितनी भी आप इंक्वायरी कर सके, वाउचर देख सके, डिनोमिनेशन देख सके, उस हिसाब से आपको डिसाइड करना है कि ये फर्जी एंट्री केवल बुक एंट्री है या एक्चुअल एंट्री है। अगर सर, एक बुक बार एंट्री है तो करना है। एप्लीकेशन भी देख ले, एप्लीकेंट से एप्लीकेशन आया कि नहीं एग्रीकल्चर लोन के लिए। राइट सर। केसीसी में नहीं आता सर, केसीसी में एप्लीकेशन। सर देखिए, जो ये- अकुल जी का सवाल है ना वो अभी भी स्टिल स्टैंडिंग है। दे आर वरी कि भाई सारे अकाउंट ऐसे मैं क्या करूं। तो मैं जो समझ पा रहा हूँ पूरी, और अगर मैं करने बैठा तो पूरी ब्रांच ही खत्म हो जाएगी। और बचाना है तो फिर किसी एक को क्या, वो सारे बचेंगे। तो एक प्रैक्टिकल समस्या मेंबर्स के साथ है। मैंने काफी रूरल ब्रांचेस करी है, तो अभी इसके अंदर सर मेरी बस यही अतुल जी को एडवाइस रहेगी कि अगर आपके पास टाइम सफिशिएंट बन पा रहा है, आप फाइट कर पा रहे हैं, देखिए इजीली तो वो आपको जल्दी से करने नहीं देंगे, है ना। मैं ये नहीं कह रहा आपको प्रेशर में आना नहीं आना, एज पर नॉर्म्स तो बुक एंट्री गलत है, और उसको हमें अगर टेक्निकली बात करें तो हमें उसको सारी चीज चेक करके, अगर वो एनपीए जा रहे हैं चाहे पूरी ब्रांच जा रही है, हमें उसके साथ रहना है। पर आपको इसके लिए काफी पेशेंस रखना पड़ेगा, काफी टाइम देना पड़ेगा, ये मान के चलिएगा। क्योंकि आपको खाली एग्जाम्पल देके भी नहीं छोड़ सकते कि 10 एग्जाम्पल ऐसे मिले इसलिए सारी एंट्री ऐसी हो गई है। तो हमें अपना जो सैंपल साइज है वो भी बढ़ाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा उस चीज को अगर आप करने की पोजीशन में है तो मेरी एडवाइस है कि हमें उसमें जाना चाहिए, लेकिन ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट बाकी चीजें जैसा आप समझे, थोड़ा प्रैक्टिकल एरिया पे आप देख लीजिएगा। थैंक और यू। सर यदि आप कर रहे हो तो डॉक्यूमेंटेशन को जरूर सुधार ले अपना, और डॉक्यूमेंटेशन चाक चौबंद करके रखें, क्योंकि कल को कुछ भी क्वेरी आता है तो आपको डॉक्यूमेंटेशन ही सपोर्ट करेगा। जी सर, समझ गए सर। कल मैंने एक एग्जांपल दिया था कि इस तरह की प्रैक्टिस बैंक को अवॉइड करना चाहिए। केवल एनपीए बचाने के लिए अगर बैंक ऐसी प्रैक्टिस करती है तो एक बड़ी दिक्कत आ सकती है, जिसका मैंने कल एग्जांपल दिया था। किसी एक बैंक ब्रांच में ऐसा हुआ कि जब विदाउट मूवमेंट ऑफ कैश बैंक ने डिपॉजिट की एंट्री भी कर दी, विड्रॉल की एंट्री भी कर दी, तो जो बारोअर था उसने डिपॉजिट की एंट्री को तो ऑब्जेक्ट किया नहीं, पर जो विड्रॉल की एंट्री थी उसको ऑब्जेक्ट किया कि मेरे खाते से पैसे निकल गए। तो एक तरफ तो बैंक का जो लोन लिया था वो चुका नहीं रहा था, दूसरा बैंक ने जो इस तरह की एंट्री की तो एक क्लेमेंट और बन गया कि भाई मेरा पैसा जो है किसी ने निकाल लिया, तो बैंक को उसको रिटर्न करना पड़ा। तो ये एग्जांपल भी हम ब्रांच मैनेजर को दे सकते हैं कि थोड़ा सा बी सेफ। इसी एग्जांपल में मैं ऐड करूंगा सर, आज से करीब 15 साल पुरानी बात है कि वो उस समय क्या था, बैंक थोड़ा और होशियारी करता था, आज डाल के अगले दिन निकाल लेता था, मतलब अगले दिन उसकी विड्रॉल की एंट्री पास करते थे। तो बैंक ने क्या किया, उसको डिपॉजिट किया, अगले दिन बाई चांस संडे था क्या था, उसके बाद उसको विड्रॉल के लिए वो जाने लगे तो पता चला बोरोवर ने पहले निकाल लिया पैसा, वो एटीएम कार्ड कार्ड आ गया था। तो मतलब इस तरीके से कुछ विड्रॉल हो गया था, शायद एक दिन का वर्किंग डे था बीच में। तो कभी कभी ऐसी दिक्कत हो जाती है, बैंक के साथ उल्टा पड़ जाती है चीज। तो सर इन्हीं वजह से आईबीए जो है वो स्मॉल ब्रांचेस को ऑडिट के परव्यू से हटाना भी चाहते हैं, यही वजह है कि कोई देखे ही ना। वेरी ट्रू सर। सर आप कहाँ से बेस करते हैं, कौन सी सिटी से बेस करते मैं हैं? कानपुर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। राइट, थैंक यू। मैं सोचता हूँ आकाश जी अब रेज हैंड अभी रुक जाते हैं, हाँ एक आध क्वेरी पूछ लेते हैं, उसके बाद फिर हम रेज हैंड करेंगे। तो एक क्वेरी आई है
उसमें फैक्ट्स ही फैक्ट्स हैं। एग्जैक्टली क्या है हम लोग जब उस फैक्ट्स को पढ़ेंगे तो थोड़ा सा समझ में आएगा। ये 5th नंबर की क्वेरी में है, बताते हैं कि लोन टाइप जो है कैश क्रेडिट है, उसमें स्कीम कोड बताते हैं एसएमई स्मार्ट स्कोर। स्कीम की जो पॉलिसी है वो ये है कि लोन टू बी रिन्यूड every 2 years with annual review of performance. Date of last renewal 12th February 2019. Account is renewed in system on 8th December 2021. But actually no document for renewal has been received from the borrower. Query: what will be the date of NPA? Whether calculation of 180 days will begin from 11th February 2020 or 11th February 2021. 20 सर, क्योंकि जो वापस आपने क्वेरी पढ़ना होता। हाँ जी, नहीं समझ गया सर, समझ गया आपने। मैं पीछे सेशन में भी था तो कई लोगों को ये प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिया कि जब आप लोन बैलेंस फाइल अपने सिस्टम से जनरेट करते हैं सीबीएस से, तो आप बहुत सारे ऐसे अकाउंट में देखेंगे कि जिनका पुराना रिन्यूअल पेंडिंग है, तो वो रिन्यूअल की डेट वो डालते हैं कि भाई मेरा अकाउंट रिन्यू हो गया है। But when you ask for the file of particular borrower, you will find that you will not find even a single document कि भाई उनके रिन्यूअल से रिलेटेड कुछ फाइनेंशियल आए हो, एप्लीकेशन आया हो, कुछ भी, पर आपको नहीं मिलेगा। सो इन दैट केस आपको सिंपली पता चलता है कि ये उन्होंने अपने सिर्फ सिस्टम में किया है और ये एक्चुअल अकाउंट जो है वो रिन्यू हुआ ही नहीं है। तो जब वो रिन्यू होना चाहिए था तब से आप देख लो 6 महीने का आपका टाइम पीरियड है, तब तक आपका नहीं हुआ। उसके बाद से आप देखो अकाउंट इरेगुलर है और आप इस अकाउंट को एनपीए जरूर कीजिए। मतलब हमको एक्चुअल सबसे ड्यू है। अनुज जी, जो आप सिस्टम वाली बात कह रहे हैं, कभी कभी तो वो एक साथ एक ही डेट पे 1000 अकाउंट मान लीजिए उन्होंने रिन्यूअल कर दिया, तो मैं मैनेजर से पूछ लेता हूँ कि भाई इतनी एफिशिएंसी आप में आई कहाँ से? जब सब पूरे टाइम आप रोक के चले, आज आपने अचानक सब कर दिए, तो फिर तो ये भी केस सामने आ जाता है। तो वो भी एक तरीका है कि डेट अगर कॉमन दिख रही है सब में तो वो आप जरा एक बार जरूर चेक करें। एक और क्वेरी है, कॉमन है, हम सभी के साथ होती है पर हम लोग जनरली ध्यान देते नहीं है। क्वेरी ये है कि सैंक्शन लिमिट जो है 40 लाख रुपीस है। डीपी एज पर स्टॉक स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2021 40 लाख है। डीपी एज पर ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 2021 रुपीस 3 lakhs only. Whether the primary security has been deteriorated and it may be moved to loss asset. ये हम जनरली देखते हैं कि स्टॉक स्टेटमेंट में तो फिगर अच्छा खासा आ जाता है स्टॉक का, और बैलेंस शीट जब देखते हैं तो बैलेंस शीट में वो अमाउंट कम होता है। हालांकि ये जो इन्होंने क्वेरी दी है तो इसमें स्टॉक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट सेम बताई है। जनरली बैंक स्मार्टली क्या करती है कि स्टॉक स्टेटमेंट की डेट अलग रखती है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट अलग होती है। तो यहाँ पर चूंकि इन्होंने कहा है कि कॉमन है सर आपको कि स्टॉक स्टेटमेंट की डेट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेट जनरली डिफरेंट रहती है, तो वो तो एक चीज अपने को देखना ही पड़ेगा। आरबीआई एक चीज और कहता है इसके अंदर कि कोई टेम्पररी डिस्टर्बेंस आए तो उसके हिसाब से एकदम से हमको एनपीए नहीं करना चाहिए, पर यदि कोई परमानेंट लॉस है तो श्योरली उसको डाउटफुल कैटेगरी में ले जाना चाहिए। अब यहाँ पर तो क्या है, दोनों समझना पड़ेगा टेम्पररी और परमानेंट। राइट सर। यहाँ पर शरद जी इसमें यहाँ पर दोनों की डेट सेम है, दोनों की डेट सेम है। एक ही तारीख को जो बारोवर ने स्टॉक स्टेटमेंट दिया है कि 31 मार्च को मेरा स्टॉक 40 लाख रुपए था, स्टॉक स्टेटमेंट में उसी दिन की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें उसने कह दिया कि मेरा स्टॉक केवल 3 लाख रुपए था। तब ऐसे में ऑडिटर को क्या निष्कर्ष निकालना है? क्या डीपी 3 लाख रुपए से कैलकुलेट करे जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे है और ऑडिटेड है, या फिर वो स्टॉक स्टेटमेंट से चले? इसमें जो है ना, चलो आप बोलिए अनुज जी प्लीज, आपका एरिया। नहीं आपका एरिया पहले आप बोलिए, आप ऐड करें। देखो सर, इसमें क्या कर सकते हैं, एक आपने 31 मार्च 21 का बोला तो करस्पॉन्डिंग नंबर आपके पास 31 मार्च 20 के भी अवेलेबल होंगे, राइट? तो जो पोजीशन आपके पास 31 मार्च 21 में आ रही है कंपेयरिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद स्टॉक स्टेटमेंट, अगर आपका वो पुराना क्लाइंट है तो आप पिछली वाली स्टॉक स्टेटमेंट को भी मंगवा के एक बार उसको भी चेक कर लीजिए। इससे क्या प्रूफ होगा कि ये हर साल इसकी यही कहानी रहती है या अचानक से कुछ इसका हुआ, पहली जेन्युइननेस यहाँ से चेक होगी। नंबर 2, 31 मार्च को ही हमने अपने बैलेंस शीट में जो नंबर दिया है और स्टॉक स्टेटमेंट में जो दिया है, जनरली एक कंटेंशन क्लाइंट की आती है कि सर हमारा जो था वो प्रोविजनल नंबर उस टाइम पे था,
बाद में जब हमने ऑडिट किया तो ऑडिट में नंबर ऊपर नीचे हो गए। तो अगर 5 से 10% का ऊपर नीचे है दैट इज स्टिल एक्सेप्टेबल, राइट। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तो 99-98% का आपका डेविएशन हो गया है और वो भी सेम डेट का है, तो इसलिए ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा। और उस एक अब इसमें फर्दर एक स्टेप आप और आगे जाइए, करंट पीरियड या 3 महीने पहले का आपका दिसंबर का स्टॉक स्टेटमेंट उठाइए और क्लाइंट को एक मौका दीजिए कि तुम मुझे अपना ट्रायल बैलेंस या साइंड जो है फाइनेंशियल अपने ऑडिटर से 31 दिसंबर का लेके आओ। अगर आपको ट्रायल बैलेंस या अप्रूव्ड फाइनेंशियल वो दे देता है, उससे आप मैच कर लो। अगर वहां पे आपको लगता है कि ठीक है, गलती थी या पुरानी कुछ गलती थी, करंट डेट में ठीक है, देन यू कैन एक्सेप्ट। अदरवाइज आप उसको 3 लाख से डीपी कैलकुलेट कीजिए और इस पे बिल्कुल आप एमओसी इशू कीजिए और एनपी अकाउंट को कैटेगराइज कीजिए। राजीव जी। सर एक्चुअली इसमें होता क्या है, जो रियल पोजीशन है कि स्टॉक स्टेटमेंट तो इन्फ्लेट करके इसलिए दे देते हैं कि हमारी डीपी मेंटेन रहे, और जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बुक्स में स्टॉक लिखने की बात आती है तो इतना हायर अमाउंट ऑफ स्टॉक इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि प्रॉफिट ज्यादा आ जाएगा तो टैक्स ज्यादा आ जाएगा। तो दोनों तरफ से बेनिफिट लेने के लिए जनरली जो बारोवर होते हैं वो बैंक में स्टॉक स्टेटमेंट में अमाउंट इन्फ्लेट कर देते हैं और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में काफी ज्यादा उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो दैट इज द रियल पोजीशन। तो अभी हमारे जो लेवल ऑफ स्टॉक को अगर आपको सर वेरीफाई करना है, थोड़ा और इन डेप्थ में आपको बताता हूं, अगर आपको जाना है तो आप इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो चेक कर लीजिए। दूसरा आप पीयर एनालिसिस कर लीजिए कि मेरा यूजुअली इन्वेंट्री और टर्नओवर का कितना, लगभग कितने महीने की कितने दिन की इन्वेंट्री मैं मेंटेन करता हूं इन जनरल, राइट। तो आपको पिछले साल और उससे पिछले साल 3 साल की आप जैसे फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा जनरली कितना रहता है, और जिस इंडस्ट्री में मेरा क्लाइंट है उस इंडस्ट्री में यूजुअली लोग कितना मेंटेन करते हैं, एज ऑडिटर आपको नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग तो हो जाएगी। उसके बेसिस में भी एक आप डिसीजन ले सकते हैं कि जो इसने दिखाया है वो इन्फ्लेटेड है या मोटा मोटी एक्सेप्टेबल लेवल पे है। तो इसमें एक क्वेरी मैं और ऐड ऑन करूंगा कि जनरली क्या होता है कि अपन 31 मार्च 2021 के स्टॉक्स को कंपेयर करते हैं, बट अब उसके बाद मान लो अपन को एक मेजर डिस्क्रिपेंसी दिखती है कि हाँ स्टॉक्स में ये मेजर, फॉर एग्जांपल दिस 40 लाख एंड 3 लाख ओनली, बट अपन उस अकाउंट को देखते हैं तो वो अकाउंट बहुत बार क्रेडिट पोजीशन में भी चला जाता है, मतलब बहुत रेगुलर है, मतलब बहुत अच्छा अकाउंट है जिसमें इंटरेस्ट भी सर्व हो रहा है, इनफैक्ट कभी सीसी लिमिट क्रेडिट बैलेंस भी जा रही है एंड पूरा अच्छा है। तो इन दैट केस अपना क्या व्यू होना चाहिए? इसमें बिल्कुल सर, आपने जैसे प्रोसेस या परफॉर्मेंस ऑडिट की बात की कि हमने अकाउंट को जैसे ट्रांजैक्शन ऑडिट किया, तो मुझे समझ में आया कि यूजुअली क्रेडिट भी रहता है, मीनिंग देयर बाय कि वो उसमें इनहेरेंट वीकनेस ज्यादा नहीं है, ठीक है। उस केस में सिंपली आप जो 3 लाख जो आपके पास पोजीशन आ रही है आप उसी वैल्यू को ले लीजिए 3 लाख, क्योंकि 3 और 30 का बहुत ज्यादा गैप है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो ऑडिटेड नंबर है उस पर आप रिलाई करके उसको नंबर को लेके और डीपी आप बनाइए और फिर देखिए डीपी बन रही है या नहीं बन रही है तो आप अकॉर्डिंगली अपना डिसीजन ले लीजिए। इसमें मैं ऐड ये करना चाहूंगा, अनुज जी ने जो बताया कि भाई हमें पीछे का मतलब बाकी सारे पैरामीटर चाहे वो इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो बाकी सब देखने चाहिए, बट जो पीयूष जी बोल रहे थे वो आईरेक नॉर्म्स जो 1 अक्टूबर वाला है उसका पैरा 4.2.4 जो कि टेम्पररी डेफिशिएंसी के बारे में बात करता है। लेट्स से अगर आपने 31 मार्च को पकड़ भी लिया कि ये यहाँ पर स्टॉक इज इनसफिशिएंट और डीपी कम आ रही है, बट वो कहता है कि ऐसा हो सकता है आपको इससे अगर इस मंथ नहीं आ रही, आप इससे पिछले मंथ जाके देखिए, तो आपको फिर फेब में जाना पड़ेगा। समझिए शायद भाई साहब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप 31 मार्च की 21 की डेट को आप लेके बैठ गए तो बोलेगा ठीक है जी उस पर्टिकुलर डेट पे नहीं आई मेरी, आप उससे पीछे जाके देखिए, तो आप फेब में जाएंगे तो फेब में फिर आ जाएगी क्योंकि उसने स्टॉक स्टेटमेंट सबमिट किया होगा, ऑडिट बैलेंस शीट नहीं होगी। तो हमें बाकी और फैक्टर्स भी अरेंज करने पड़ेंगे, खाली बैलेंस शीट को बेस बना के हम उसको एनपीए की तरफ लेके जाए तो मेरे हिसाब से वो ठीक नहीं होगा, हमें इस पर थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और जब जैसे इनहेरेंट वीकनेस है बाकी चीजें वो सब चेक करके ही हम आगे बढ़े, तो क्योंकि टेम्परेरी 90 डेज तक का आप स्टॉक मूवमेंट पीछे जाके देख सकते हैं, अगर इस मंथ से नहीं बन पा रही है आप पिछले मंथ जाके देख सकते हैं, ये आरबीआई ने अलाउ कर दिया। अच्छा, इसमें एक बात और आ रही है कि हम एलएफआर में एक पॉइंट देखते हैं कि वो ये पूछते हैं कि बैंक ने क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्टॉक स्टेटमेंट की स्क्रूटनी प्रॉपर की है, तो यहाँ पर तो दिख रही है कि बैंक ने एट ए टाइम स्टॉक स्टेटमेंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतनी बड़ी डिस्क्रिपेंसी होते हुए भी कहीं से कहीं तक भी उसको देखा नहीं, उसको मॉनिटर नहीं किया। फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसके बाद 5-6 महीने बाद आए होंगे और स्टॉक तो उसके बाद उसी दिन आ गया होगा मार्च में।
फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उस डेट के, लेकिन वो आए तो प्रैक्टिकली बाद में है। तो बैंक पीछे जा जाके नहीं देखता। हाँ, लेकिन जिस समय उसे रिव्यू किया, रिन्यूअल किया, उस समय उन्हें वो मैचिंग करके, और अगर जरूरत पड़े तो उसका एक लेटेस्ट स्टॉक ऑडिट करवा के देखना चाहिए बैंक को। तो क्या और सर- ऑडिटर को फिर भी सेफ साइड रह के ये कर लेना चाहिए कि प्रॉपरली स्क्रूटनी नहीं करते हैं? पीयूष जी बताएंगे सर इसके बारे में, मैं पीयूष जी को बोलूंगा। पीयूष जी 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 कहना जी चाहते जी जी। नहीं, ऑडिटर को स्क्रूटनी तो सर करनी चाहिए, पर अभी जो प्रैक्टिकल सिचुएशन है, मार्च 21 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो बोल रहा है, तो उसको प्रैक्टिकली ये मेरे ख्याल में प्रोपराइटर ही होगा, तो 15 फरवरी के पहले तो उसको मिला नहीं होगा। तो लास्ट के जो 11 महीने हैं उसने ऑलरेडी एंजॉय कर लिए, और उसमें यदि परफॉर्मेंस अच्छा है तो वो मेरे ख्याल में अपन ये मान सकते हैं कि वो टेम्पररी फेज रहा होगा। और अभी परफॉर्मेंस के बेसिस पे पहले जज करें। सबसे पहला क्राइटेरिया 90 डेज या जो अपना परफॉर्मेंस है, फिर सिक्योरिटी है आज की, और आज की जो डीपी है वो आज की स्टॉक के हिसाब से है, और आज की स्टॉक तो आप जाके वेरीफाई नहीं कर सकते। तो आपको एक कॉल तो परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही लेना पड़ेगा कि स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है। ऑडिट की डेट पे स्टेटमेंट और मंगवा कर उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी हो सकता है। सर प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है सर, आपके पास जितना ड्यूरेशन रहता है उसमें आप ये नहीं कर सकते। Right, हैं। हमें आज sir. स्टॉक ऑडिट अलॉटमेंट होता सर, एक महीने में तो जाते हैं सीए, जब जाते तो स्टॉक ऑडिट हो पाता है। आप चाह रहे हैं आज अलॉट हो जाए और वो करके भी अरे सर प्रैक्टिकल चीजों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा कुछ भी व्यू लेने के पहले। Right, sir. जी 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 जी। अब हम लोग अगली क्वेरी पे आते हैं। 7th नंबर की क्वेरी है, आवर फर्म हैज बीन अपॉइंटेड एज स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ the amount of GECL has not been deducted by the branch to arrive at drawing power for cash credit accounts. As per our opinion, all GECL loans were granted to meet the short-term outstanding liabilities or to purchase the raw material or for future payment of wages or expenses. Hence, due to the nature of GECL and to avoid double financing on stock/book debts in lieu of cash credit accounts, the amount of GECL provided to the borrower should be deducted at the time of DP calculation. Kindly share your opinion. यस सर, इसमें जो GECL है वर्किंग कैपिटल के अगेंस्ट मुझे वर्किंग कैपिटल के रूप में मिला है, तो या तो आप इसके लिए जैसे डीपी बनाएंगे तो यूटिलाइजेशन उतने से आप बढ़ा दो जितना आपका GECL है, उसका भी यूटिलाइजेशन जो है वो नॉर्मल आपका जो यूटिलाइजेशन है उसके साथ इसे ऐड कर दो, तब देखो कि मेरे लिए पूरे यूटिलाइजेशन के हिसाब से डीपी अवेलेबल है या नहीं है। दूसरा अल्टरनेट कि आपको जैसे डिडक्ट करने की आप बात करो तो टोटल में से भी डिडक्ट कर दो कि मेरा जो स्टॉक इसके अगेंस्ट है या डीपी इसके अगेंस्ट है वो हमने लेस कर दिया, बाकी जो बैलेंस डीपी है वो मेरे नॉर्मल रेगुलर वाले जो एडवांसेस है अवेलमेंट है उसके अगेंस्ट डीपी सफिशिएंट बन रही है या नहीं, तो आपको कंसीडर करना पड़ेगा। कुछ बैंकर या कुछ क्लाइंट का ये कहना होता है कि सर मुझे आरबीआई के नॉर्म्स में ये बोला गया था कि इसके अगेंस्ट आपको सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है। सर प्राइमरी सिक्योरिटी तो आपको देना पड़ेगा ना, वो कोलेटरल एडिशनल देने की जरूरत नहीं थी, बट प्राइमरी आपको देना पड़ेगा। यस पर सर GECL मेरे ख्याल में जो दिए गए थे वो सब टर्म लोन बेसिस पे टर्म लोन कैटेगरी में वर्किंग कैपिटल, वो तो ये WCDL इसमें दिए गए थे। include नहीं होना चाहिए, मेरा व्यू पर्सनली ये है। सीसीओडी या टीएल देखना पड़ेगा। नहीं, CCOD में अगर नहीं दिया, GECL मेरे ख्याल में WCTL दिए हुए हैं, तो टर्म लोन होते ही CC से अलग हो जाएगा वो। CC में तो स्टॉक Even if it's a WCTL, तो भी आई थिंक डीपी की कैलकुलेशन में WCTL तो काम नहीं आएगा, राइट? मैं सर इसमें ऐड करता हूँ, आरबीआई की नॉर्म्स है कि आपका जो टोटल वर्किंग कैपिटल की फैसिलिटी होती है पहले 60% आपको WCTL कैटेगरी में यूटिलाइज करना होता है, जो आपको बाकी अमाउंट है वो आप CC कैटेगरी में यूटिलाइज करते हैं। तो जो चाहे वो WCDL हो या फिर आपका CC हो, दोनों ही केसेस में आपको डीपी निकालनी पड़ेगी कि दोनों की ही जो प्राइमरी सिक्योरिटी होती है वो बुक डेट और स्टॉक ही होता है, इसीलिए आपको वहां पे डीपी दोनों के लिए ही निकालनी पड़ेगी। Any other opinion? ठीक है, अनुज सर की मास्टरी है इसमें, तो एग्री कर लेते हैं। जी अरे देखो जिनका जो कोर एरिया है आपने भी सब। तो राजीव जी अब हम आगे बढ़ते हैं। राजीव भाई आप बिल्कुल ऐड कर सकते हैं, मैं आप लोगों से सीखता हूँ, थोड़ा बड़ा ही मेरा एक्सपीरियंस है। सर सभी एक दूसरे से सीखते हैं, यहाँ तो
ये मंच ही ऐसा है कि इन्होंने आकाश भाई ने और शरद भाई साहब ने लिख दिया एक्सपर्ट। मैं तो उसका भी विरोध कर रहा था, वो जो फ्लायर बना था, मैंने कहा भाई एक्सपर्ट मत बताओ, एक डिस्कशन है, सर ठीक है। इसीलिए अपने हमारी उपस्थिति जरूर रहेगी, इतना जरूर हम एश्योर कर रहे थे आपसे, लेकिन सर अदरवाइज फिर कोई एक्सपर्ट नहीं है, सब अपन अपनी अपनी सभी राय सीखते दे हैं रहे सर, हैं। इसीलिए अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस बोला जाता है। देखिए, आप लोगों का बड़प्पन है कि आप लोग बोल रहे हो हम एक्सपर्ट नहीं है। बाकी हम लोग जो सुन रहे हैं ना, हमको पता है कि भाई हमको वो सभी बातें सुनने को मिल रही है जो हमको बिल्कुल पता नहीं थी, या हम किसी और दिशा में सोच रहे थे और आपने हमको उस गलत दिशा से पकड़ के, हमारा हाथ पकड़ के हमको सही डायरेक्शन में खड़ा कर दिया है। तो एक्सपर्ट तो हमको बताना है कि आप हो। आपका तो बड़प्पन है कि आप कभी नहीं मानोगे कि आप एक्सपर्ट हो। तो अब मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ। सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ये पूछ रहे हैं कि एफडी के अगेंस्ट में कोई लोन दिया हुआ है। अब एफडी की जो ओरिजिनल वैल्यू थी, उसके बाद आज तक का जो उस पर एक्रूड इंटरेस्ट है, उन दोनों को जोड़ दिया और लोन खाते में जो आउटस्टैंडिंग है वो देख लिया। तो लोन खाते का आउटस्टैंडिंग जो है एफडी प्लस एक्रूड इंटरेस्ट से ज्यादा जा रहा है। बारोअर जो है कुछ पेमेंट नहीं कर रहा है, तो हम इसको एनपीए मान लें या नहीं माने? सर इसमें ड्यू डेट और रिपेमेंट शेड्यूल ही देखना पड़ेगा, और जो एफडी और एक्रूड इंटरेस्ट से ऊपर का अमाउंट है वो अनसिक्योर्ड होगा, तो अनसिक्योर्ड की प्रोविजनिंग अनसिक्योर्ड के हिसाब से होगी। और यदि ड्यू डेट के हिसाब से पेमेंट नहीं है तो एनपीए होगा। सिंपल सा बस यही सॉल्यूशन है। जनरली जो बैंक जो है एफडी के अगेंस्ट जो ओडी देती है, उसमें पेमेंट करने की आवश्यकता नहीं रहती है। बैंक क्या करती है कि 100 रुपए की एफडी है तो लोन ही देगी 80 रुपए का। तो जितना जितना 80 रुपए के लोन पे ब्याज बढ़ेगा, उतना उतना ही 100 रुपए की एफडी पे बढ़ेगा। तो हमेशा एफडी का ब्याज और एफडी का मूल अमाउंट लोन से हमेशा अधिक रहेगा। तो जब भी कभी ये पीरियड खत्म होगा लोन का, उस समय बैंक उसको सेट ऑफ करके और बाकी बचा हुआ अमाउंट उसको दे देती है। इसलिए शायद आईरेक के नॉर्म्स में भी कहा है कि बैंक की एफडी के अगेंस्ट जो भी लोन है, ओडी वगैरह है, उसको एनपीए नहीं करना है। पर ये स्पेशल कंडीशन इन्होंने बताई, तो ऐसा लगता है कि बैंक ने इसमें मार्जिन नहीं रखा होगा, या मार्जिन रखा होगा तो बहुत कम रखा होगा। सर ऐसा हो सकता है कि नॉर्म्स के हिसाब से रखेंगे, कोई एडिशनल मार्जिन नहीं रखें ऐसा तो, मतलब मार्जिन नहीं रखें ऐसा तो बैंक का सीपीएस अलाउ ही नहीं करेगा किसी भी बैंक को। इसमें सर आपका जो स्पेशल कंडीशन आ गई है कि आईरेक नॉर्म्स में 4.2.11 में आप जाके देखेंगे तो वो बोलता है कि आप अगर आपका एफडी है, केवीपी है, या ऐसी चीजों के अगेंस्ट आपने अगर लोन लिया है तो उसको जनरली आप एनपीए नहीं करेंगे। लेकिन वहां पे एक वर्ड है सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू में ये बोलता है कि सफिशिएंट या एडिक्वेट मार्जिन होना चाहिए। अब लेट से अगर मैंने अपनी पीछे 6 इंस्टॉलमेंट जो है वो पे नहीं की, और उस 6 इंस्टॉलमेंट का प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आप मिला देंगे तो वो नियर बाई आपके एफडी के अमाउंट पे पहुंच गया। अब अगर अगली इंस्टॉलमेंट आपकी ड्यू होगी तो उसके सर्व करने के लिए आपके पास कोई मार्जिन ही नहीं बचा। तो जब आपका मार्जिन नहीं बचेगा तो आपका अकाउंट ओवर ड्यू होगा और वो कंटिन्यू होगा, तो आपको एनपीए करना पड़ जाएगा। तो अगर मार्जिन एडिक्वेट नहीं है, इन दैट केस यू शुड गो विद द रिक्लासिफिकेशन इनटू सब स्टैंडर्ड एसेट। बट अगर मार्जिन है सफिशिएंट तो फिर आप उसको स्टैंडर्ड में रख सकते हैं। ये जो केस मुझे लगता है कि इसमें मार्जिन सफिशिएंट, इसीलिए ये जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट जो है एफडी प्रिंसिपल प्लस एक्रूड इंटरेस्ट से ऊपर निकल गया है, तो इसमें एनपीए करना ही होगा। एक अगला क्वेश्चन और है सर शरद भैया, एक मिनट, एक लाइव क्वेरी आई है। आई थिंक मेंबर ऑलरेडी ज्वाइन कर रखे हैं, बट वो समाउ सिर्फ वो सुन सकते हैं। तो उनकी क्वेरी ये आई है कि सर केसीसी में उनके पास अभी जो ऑडिट आई है उस ब्रांच में 2013 से एक भी अकाउंट आज तक उन्होंने कभी ना तो किसी केसीसी में पैसा आया है, ना उन्होंने कोई रिन्यू किया है। फर्स्ट। सेकंड, जब वो ब्रांच ऑडिटर्स को उन्होंने पूछा ब्रांच मैनेजर को कि सर ऐसा क्यों हुआ या क्यों नहीं किया, तो उन्होंने पहले लास्ट ईयर तो उसको एनपीए कर दिया था, बट ये जिस कोविड में उन्होंने उसको क्या किया कि उसको अपग्रेड कर दिया कोविड का रीजन देते हुए कि उसको एनहांस कर दिए, और उसके बाद भी अब सेम पोजीशन है कि अभी भी कोई पैसा उसमें कुछ आया हुआ नहीं है। सो व्हाट शुड बी हिज व्यू? और वो जो बोल रहे हैं कि बस 3 साल मतलब बहुत टाइम पीरियड किसी भी अकाउंट में एक्चुअली पैसा नहीं आया अभी तक। एंड ये पूरा एंटायर ब्रांच का ही जितना भी पोर्टफोलियो है, तो 90% में अकाउंट्स में यही पोजीशन है। सो वो उनका पूछना है कि सर क्या व्यू लेना चाहिए उनको अभी।
हर्ष भाई 2013 से नहीं आया उसको पेमेंट, राइट 8-9 साल हो गए, तो सर फिर तो कुछ बचा ही नहीं किसी को। कोई अगर 10 दिन से एक साथ लेटा हुआ है और बोल नहीं पा रहा है, कुछ नहीं कर पा रहा है तो आप समझ सकते हैं क्या हाल होगा। तो मैं तो समझता हूँ कि इसमें कोई क्वेश्चन रेज करने वाली बात नहीं है। आपका जो फिर भी सवाल है वो ये है कि बीच में उन्होंने लास्ट ईयर कोविड के पीरियड में 2020 अराउंड तो उसको दोबारा स्टैंडर्ड कर दिया। देखिए राइट। हमें जब आज हम चेक कर रहे हैं, जैसे भी पीछे बात भी आई थी कि हम बैक में जाके स्टार्टिंग से जाके देख सकते हैं, अगर गलती से पिछले साल किसी ने उसको स्टैंडर्ड कर दिया और उस पर ऑब्जेक्शन नहीं उठा और उसको या ऑडिटर ने सैंपल में नहीं लिया, और माइट भी हो सकता है इस ब्रांच का ऑडिट भी ना हुआ हो, क्योंकि ऐसे जरूरी नहीं है कि सभी ब्रांचों का ऑडिट कंटिन्यूशन पे रहता है, ब्रांच वाइज बात करें तो मेरा इसमें क्या नाम दे सकते हैं। और अगर कोई पेमेंट रिकवरी नहीं हुई है, आप फिलहाल उस कोविड वाले पीरियड को भूल जाइए और स्टार्टिंग से चेक करके उसके हिसाब से मुझे तो लगता है वो एनपी में जानी चाहिए, अगर आपका इतना ही डाटा है, इतना ही सबमिशन है। बाकी एक्सपर्ट जरा इस पे कुछ कहना चाहे तो प्लीज ऐड ऑन। सर कोविड लोन की जहां तक बात है, जो उसमें आपको मोराटोरियम और रिस्ट्रक्चरिंग का दिया गया था, वो ये बोलता था कि आप कंडीशन देखो कि आपका अकाउंट स्टैंडर्ड रहना चाहिए, तभी वो रिमेन स्टैंडर्ड रहेगा, पहली बात। दूसरा, आपको अगर अपग्रेड करना है तो अपग्रेड करने की भी कंडीशन है कि यू विल हैव टू पे ईच एंड एवरी पेनी ऑफ दैट अकाउंट विच इज स्टैंडिंग ऑन अकाउंट ऑफ ओवरड्यू। तो आपको पूरा पे करना है, तभी तो आप स्टैंडर्ड में उसको ले जाओगे, अपग्रेड करोगे। अगर आपने कुछ मिला नहीं तो जबरदस्ती का किस बेसिस में आप उसे अपग्रेड कर रहे हो? तो अपग्रेड जिन्होंने किया वो भी गलत है, और आप उसको एमओसी ले जाओ और उसको एनपीए करवाओ, अगर अभी उन्होंने स्टैंडर्ड में दिखा रहे हैं तो। राइट सर। एक छोटा सा एक्सपीरियंस में शेयर करना चाहूंगा। ये जो पूरी की पूरी ब्रांच का पोर्टफोलियो खराब है, उस मैटर पे कि ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं एक बार मुझे कोई रूरल ब्रांच अलॉट हुई थी, काफी इंटीरियर में थी, जाने में भी लंबा समय लगता था। कुछ इस तरह का एरिया था कि शाम को वहाँ रुक नहीं सकते थे। तो मैनेजर वगैरह ने मुझसे कहा कि भाई हम लोग आ जाते हैं, जो कुछ आपको चाहिए लेके, रिपोर्ट्स वगैरह। मैंने कहा नहीं, मैं तो ब्रांच में आऊंगा। तो मैं ब्रांच में गया तो ब्रांच पूरी स्टैंडर्ड थी, नो एनपी अकाउंट्स। मैंने सैंपल बेसिस पे 20 खाते निकाले। 20 खाते निकालने के बाद मैंने देखा कि 18 खाते जो थे खराब थे। तो मैं वहां पर इस परेशानी में फंस गया कि मैं तो ऑडिट सैंपल बेसिस पे करता हूँ, 20 खाते में से 18 खाते मेरे खराब निकल गए। अब मैंने तो पूरी ब्रांच का ऑडिट किया नहीं है। अब ऐसी स्थिति में मुझे किस प्रकार से ऑडिट रिपोर्ट में इसको डील करना चाहिए, एलएफआर में इसको डील करना चाहिए, जहां पूरी की पूरी ब्रांच का पोर्टफोलियो खराब है और आप सिंपल बेसिस पे इस चीज को देखते हो। तो मैं थोड़ा सा अपने एक्सपर्ट से इस बारे में राय चाहूंगा, क्योंकि ऐसी स्थिति काफी लोगों के साथ हो जाती है जब काफी इंटीरियर में जाना होता है और वहां कोई ऑडिटर जाता नहीं है और पूरी की पूरी ब्रांच का पोर्टफोलियो इस तरह का होता है। मुझे लगता है कि आपको स्पेशल ऑडिट के लिए एडवाइस करवाना चाहिए कि इस ब्रांच की स्पेशल ऑडिट करवाओ। सर पहले तो आपको अपना सैंपल साइज बढ़ाना चाहिए। बिल्कुल। जी। दूसरा, आपको अपने जो जोन या जो भी जोन का सेंट्रल स्टेटरी ऑडिटर है उससे ये बात करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर हो सकता है। और आपकी जैसी बहुत सारी ब्रांचों में बैंक ये चीज कर रही होगी, तो उसकी नजर में लाना, तो उसके लिए एक लेटर लिखें या जो भी एविडेंस रखें वो करें और इसको रिपोर्ट करें अपने। और ये क्वालिफिकेशन का भी पार्ट है, मेन ऑडिट रिपोर्ट की क्वालिफिकेशन का पार्ट है ये। बिल्कुल, एमओसी क्वालिफिकेशन का ही पार्ट होते हैं, तो जी वो जी जी। क्वालिफिकेशन तो देना ही पड़ेगा आपको। ये वाली बात कि भाई हमने तो सैंपल बेसिस पे किया है, और सैंपल में अगर सब्सटेंशियल पार्ट अगर ये है तो ब्रांच का स्पेशल ऑडिट होना चाहिए। दैट इज नहीं सर, स्पेशल ऑडिट नहीं, पहले आपको अपना सैंपल बढ़ाना है। सी, आप तो 15 या 20 खाते देख रहे हैं, जो भी ब्रांच आपको मिलेगी कम से कम 1000 खाते होंगे, तो बिल्कुल सही है। कम से कम 50-60 तो लेके जाए उसको, ताकि एक चंक मिले आपको जिसको आप बोल सकें कि हाँ ये बहुत सारा खराब है। क्योंकि 20 इज नॉट सफिशिएंट सैंपल टू कंक्लूड। सिंपल साइज बढ़ाना पड़ेगा ऐसे केसेस में, आपको एडिक्वेट वर्किंग करना पड़ेगी कोई भी क्वालिफिकेशन देने के पहले। क्योंकि हो सकता है कि आपने एक्सेल शीट पे वर्किंग की हो और आपने वही खाते पकड़ लिए हो जो एनपीओ हो, जिसमें भी पॉसिबल। नहीं वो हो सकता है, इसलिए तो सैंपल साइज बढ़ाने का बोल रहा हूँ मैं सर। सिंपल साइज सर बढ़ाइए। सिंपल का जो आपने क्राइटेरिया डाला है वो भी आप चेंज करके कि आपने हर तरीके के एडवांसेस को कवर किया हो, लार्ज, स्मॉल, वेरी स्मॉल, केसीसी, हर चीजें आपने कवर किए हो।
अब अगर हर कैटेगरी को लेने में, नंबर ऑफ अकाउंट भी बढ़ाने में सेम पोजीशन है, देन आप फिर नेक्स्ट स्टेप में ये डिसीजन ले सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जो हमारे पास आया है वो ये आया है कि बैंक हैज फाइनेंस 2 crore हाउस लोन फॉर रेसिडेंस पर्पस, बट borrower has built factory on that. In inspection report it is house loan, but in photo it is a factory. Finance period 2013. How to report, especially when there is difference in the rate of interest. होम लोन ले लिया है, फैक्ट्री मिली, होम लोन की जो रेट है उस हिसाब से इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है, जबकि वहां पर कमर्शियल काम चल रहा है और कमर्शियल कामों के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट हायर है। ऐसे में ऑडिटर की क्या ड्यूटी बन रही है? क्या एमओसी पास करना है डिफरेंस इंटरेस्ट की, या केवल एलएफआर में लिखना है? सर एलएफआर में तो लिखना ही रहेगा क्योंकि डाइवर्जन है, और आपको ये भी देखना पड़ेगा इंटरेस्ट जो नहीं चार्ज हुआ है वो चार्ज हो जाए, क्योंकि कमर्शियल लोन में आना चाहिए। तो एक डिफरेंस की एमओसी भी बना के अपन दे सकते हैं, देना पड़ेगी। एमओसी की सर एक वजह और इम्पोर्टेंट होगी, जो हमारे लोन का क्लासिफिकेशन होता है उसको हम सेक्टर वाइज डिफाइन करते हैं, प्रायोरिटी सेक्टर और नॉन प्रायोरिटी सेक्टर, राइट। तो जो हाउस लोन उन्होंने लिया होगा वो लिया होगा प्रायोरिटी सेक्टर पे। तो जब आप प्रायोरिटी सेक्टर को चेंज करेंगे तो एसेट क्लासिफिकेशन में एमओसी आ जाएगा सबसे पहले, रेट ऑफ इंटरेस्ट का भी पार्ट वहां पे आ जाएगा, सिक्योरिटी का भी आपका पार्ट आ जाएगा, राइट। सारी चीजें आ जाएंगी, बराबर है। तो उस हिसाब से आपका एमओसी जरूर इशू करना है। बाकी एलएफआर में लंबी चौड़ी कहानी डालिए कि इन्होंने जो इंड यूज ऑफ फंड का भी सर्टिफिकेट दिया होगा वो भी फर्जी होगा, जिन्होंने इंस्पेक्शन किया उन्होंने भी फ्रॉड किया। तो आप पूरी लंबी चौड़ी लिस्ट को बना के और अपने जो अथॉरिटी है उनको सबमिट कर सकते हैं, अपने जो ऑडिटर है सीएसए हैं उनको दे सकते हैं। ओके शरद जी, मेरा एक क्वेश्चन है बीच में। जी 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 सर, पीएनबी के अंदर बहुत सारे लोगों से एक प्रॉब्लम जो सबके सामने आ रही है, मैं कुछ ग्रुप्स में हूँ। एक्चुअली पीएनबी ने क्या किया, जो इनकी जो सैंक्शन लिमिट होती है 30/9/2020 को मास लेवल पे सारे अकाउंट्स को रीफेज कर दिया। जो गवर्नमेंट ने 6 महीने का जो एक्सटेंशन दिया था कि आपको किस्तें नहीं देनी है, अब आज की तारीख में पीएनबी क्या कर रहा है, जो एक्सप्लेनेशन सारी ब्रांचों में दिए जा रहे हैं कि सर ये जो 6 महीने का जो टाइम पीरियड था ये तो उसका ऑटोमेटिक ही बढ़ गया। तो मतलब मैं थोड़ा सा इसके लिए नेगेटिव हूँ। अब आपसे चाहता हूँ कि आप इसको थोड़ा सा एनलाइटन करें कि क्या है सर इस केस में। सर ये किस टाइप के लोन के अंदर अपन रीफ्रेजिंग की बात सर ये कर रहे हैं? टर्म लोन, हाउसिंग लोन, इस तरह के। सर हाउसिंग लोन और ईएमआई बेस्ड लोन के लिए तो आरबीआई ने अपने सर्कुलर में क्लियरली कहा था कि जो भी है आप रिपेमेंट नहीं लेंगे, मतलब वो, और उसको रिफेज करेंगे पूरी ईएमआई पे। बिल्कुल, तो वो तो करना ही था पीएनबी को भी। नहीं, टर्म थोड़ी बढ़ेगा सर उससे 6 महीने का। क्यों टर्म बढ़ेगा ना सर, मैं ईएमआई बढ़ा दूंगा, एक्सटेंड करूंगा। सर ईएमआई बढ़ाएंगे तो टर्म तो वही रहेगा ना। नहीं सर, इसमें आरबीआई के सर्कुलर में ऐसा मेंशन्ड है कि आपको इसको आगे ले जाने का। और जैसे मेरे को ध्यान है एचडीएफसी ने भी जैसा मेरा खुद का हाउसिंग लोन है तब उन्होंने ऑप्शन दिया था whether you want to increase EMI और इंक्रीज टेन्योर। जनरली EMI में चेंजेस नहीं होते तो टेन्योर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। सर लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ इसकी केस में, जब इनिशियल जो एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट के अंदर टर्म डिसाइड हो गया कि सब आपने जो पूरा एग्रीमेंट किया है बैंक के साथ, उसमें लिखा हुआ है कि 10 साल के लिए आप इस पर्टिकुलर लोन को ले रहे हो। अब वो जब तक कस्टमरी रिक्वेस्ट नहीं देगा उसके लिए वो टर्म कैसे बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक? वो आरबीआई के सर्कुलर के कारण उन्होंने ऐसा करा है सर। नहीं सर, उस टाइम पे भी बहुत क्लियर आया था बीच में कि अगर कोई आदमी चाहे तो वो पेमेंट कर सकता है, चाहे तो वो ना करे। मतलब इसको लेकर बैंक में बहुत एम्बिगिटी है और बहुत सारे लोग इस चीज के लिए, मतलब बैंक अल्टीमेटली क्या कर रहा है कि 6 महीने उस जो एनपी अकाउंट है ना उसको 6 महीने और आगे लेके जा रहा है। भाई अगर मैं आज एप्लीकेशन ही नहीं दे रहा हूँ कि मेरे अकाउंट को आप चेंज करो। लोकेश जी इसमें 2 सर्कुलर हैं। एक आपका 27 मार्च 2020 का सर्कुलर है, जब आपका ये पहली बार आया था 3 महीने की ईएमआई के लिए। हाँ ठीक है।
उसको एक्सटेंड करने के लिए दूसरा आपके पास एक सर्कुलर था मई 23 मई 2020 का, जिनमें उन्होंने 3 महीने के लिए फर्दर एक्सटेंड कर दिया। ठीक है। अभी दोनों ही सर्कुलर को आप पढ़ेंगे तो उसमें टर्म लोन और सीसी के लिए दोनों में ये कहीं पे ये नहीं है कि वो एक्सटेंड करेंगे, बस उन्होंने ये बोला कि आपको इन 6 महीनों में आपको पेमेंट नहीं करनी है, जो आपका इंटरेस्ट है वो डेबिट नहीं करेंगे आप अकाउंट में, मतलब ड्यू नहीं होगा, एक्रू होगा। इंटरेस्ट का जो अमाउंट है दैट विल कंटिन्यू टू एक्रू बट ड्यू नहीं होगा, मतलब कस्टमर की लायबिलिटी नहीं आएगी। दिस विल इम्पैक्ट ऑन द क्लासिफिकेशन पार्ट, कि अकाउंट का जो क्लासिफिकेशन है वो सब स्टैंडर्ड नहीं होगा अगर 6 महीने मेरा नहीं आता। बिल्कुल सर। अब रिपेमेंट के पार्ट पे आते हैं। तो अब अगर मेरा वो टर्म लोन का केस है और उसमें जो रिपेमेंट 6 महीने का एक्यूमुलेशन हो गया है, वो प्रैक्टिकली मैं आपको बता रहा हूँ, कई बैंकर्स के साथ मैंने जो प्रैक्टिकली देखा है, उन्होंने उस अमाउंट को कैपिटलाइज कर दिया है। ठीक है, राइट। कैपिटलाइज करने से आपका जो इंस्टॉलमेंट है वो प्रोबेबली थोड़ा सा बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा, बचा हुआ है। राइट। लगभग सभी बैंकों ने ये आगे एक्सटेंड ही करा है, कैपिटलाइज ही करा है। यस। अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है, जैसे उनकी जो डेट थी अगस्त की डेट थी, तो अब आपका अगस्त के बाद 3 महीने चेक करना है कि क्या अगले 3 महीने भी वो ओवरड्यू था। जैसा लोकेश भाई आपने मुझे एग्जांपल दिया था 9 महीने का शायद, तो अगर वो 9 महीने मतलब 6 महीने के बाद 3 महीने फिर भी ओवरड्यू रहा, तो 91 डेज जैसे ही होता है, देन यू कैन क्लासिफाई एज सब स्टैंडर्ड। राइट। दिस इज केस ऑफ टर्म लोन। अब आते हैं सीसी के केस में। जो आपके सीसी और डी वाले अकाउंट थे, उसके केस में क्या हुआ कि जो आपका इंटरेस्ट का पार्ट था वो एक्यूमुलेट होता गया, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी 3 महीने, ये 6 महीने खत्म होने के बाद जैसे ही अगला ड्यू आएगा तो आपका पूरा ड्यू कर दिया जाएगा और आपको इमीडिएट पे करना है। दिस इज लैंग्वेज ऑफ आरबीआई सर्कुलर। बिल्कुल सर। एक फैसिलिटी दी गई FITL की कि आप चाहो या तो अगर आपका कस्टमर रेडी है तो पूरा अमाउंट आप रिकवर करके और ओवरड्यू पार्ट खत्म कर दो, रेगुलराइज अकाउंट को कर दीजिए। दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आप जो टोटल एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट है उसको FITL में कन्वर्ट करके इंस्टॉलमेंट बांधो और आप वापस ले लो, लेकिन पूरा का पूरा FITL जो है 31 मार्च 21 से पहले क्लोज हो जाना चाहिए, ये आपको इंश्योर करना था एज पर आरबीआई जो 23 मई वाला है। तो ये पूरी कहानी है। अगर इससे आगे आपका जा रहा है तो आप इमीडिएट उसे रिक्लासिफाई कीजिए एज पर IRAC नॉर्म। नहीं है, आप ये दोनों सर्कुलर, मैंने आपको डेट फिर से बता देता हूँ, 27 मार्च 2020 और दूसरा आपके पास है 23 मई 2020। 23 मई 2020। ठीक है लोकेश भाई? ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सर। एक थोड़ा सा विचित्र केस आज मैंने देखा बैंक में, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। 2-3 बोरोवर्स हैं जिनको बैंक 2018 से ही नोटिस दे रही कि आप पेमेंट नहीं कर रहे हो तो सफिशिएंट नहीं कर रहे हो। मैं समझता हूँ मोटे तौर पे वो NPA पहले ही हो चुके होंगे। अब अभी तो उन लोगों ने पेमेंट करना बिल्कुल बंद कर दिया। अब बैंक ने क्या करा कि अभी 1-8 महीने पहले उनको बुलाकर वो कोविड स्ट्रेस वाला एक एप्लीकेशन भरवा लिया, और उसके बाद बैंक ने अपने जो भी है इंटरनल जो भी सैंक्शन वगैरह देना उसमें लिख दिया कि अभी 6 महीने तक इनको कुछ भी पेमेंट नहीं करना, इनका पेमेंट जो है वो स्टार्ट होगा 6 महीने बाद। तो वेदर दिस इज करेक्ट? इस तरह से बैंक कर सकती है क्या? तो इसमें सॉरी राजीव जी डिस्टर्ब कर रहा हूँ सर, इसमें बैंक कर सकती है पर वो खाता स्टैंडर्ड होना चाहिए जिस दिन ये रिस्ट्रक्चरिंग कर रहे हैं। यदि वो स्टैंडर्ड है तो बैंक जो आप बोल रहे हो वो बिल्कुल कर सकती है। मतलब 31 मार्च 2021 के दिन भी कर सकती है क्या? क्या ये 6 महीने बाद पे करेगा? नहीं सर, इसके लिए बोरोवर के लिए कौन सा सर्कुलर एप्लीकेबल होगा वो देखना पड़ेगा। मेरे ख्याल में ये 1 मई 2021 वाले जो सर्कुलर हैं उसमें कवर किया होगा उन लोगों ने। तो सिंपली उन्होंने कह दिया कि अब आपको कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। सर 21 के बाद नहीं कर पाएगा, 21 के बाद नहीं कर पाएगा, 31 मार्च के बाद नहीं कर पाएगा। ये तो उन्होंने अभी कर दिया, कोविड की एप्लीकेशन फिलअप करवा के अभी करंट ईयर में कह रहे हैं 21-22 में, तो सब नहीं कर पाए लेटेस्ट। नहीं सर 5 में 21 को एक रिजोल्यूशन 2 भी आया था, उसके अंदर आप ये कर सकते थे, और उसके ड्यूरेशन जो है वो 1 मिनट में सर्कुलर देख के बोल देता हूँ आपको। वो रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क 2 है, RBI सर्कुलर May 5, 2021 का है। 21 का बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। उसमें भी वही कंडीशन है कि अकाउंट स्टैंडर्ड रहना चाहिए,
उसमें भी जो हाँ। रिस्ट्रक्चरिंग की कंडीशन है कि रिस्ट्रक्चरिंग जो है इन्वोक करने की डेट दी गई है कि इन्वोक करना है, इन्वोक आपको कैसे करना है वो भी उसने बताया कि आपका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए और पूरी प्रोसेस जो है सितंबर से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो अगर वो प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग है और यू आर एबल टू जस्टिफाई कि प्रॉपर रिस्ट्रक्चरिंग है तब ठीक है। अगर भाईचारे वाली रिस्ट्रक्चरिंग हुई है तो यू कैन ऑब्जेक्ट। सर एक बार एप्लीकेशन लेटर देख लेना कि पार्टी से कब लिया है, वो इन्वोकेशन डेट के पहले का ही होना चाहिए। वो तो पूरी खाली पड़ी है एप्लीकेशन, केवल साइन है उसके। तो लास्ट डेट इस काम के लिए लास्ट डेट क्या थी? मैं बड़ा मतलब बहुत सिंपल तरीके से जानना चाह रहा हूँ कि ये फरवरी मार्च में अगर कर दिया है 2022 में, तो इसके लिए लास्ट डेट क्या थी जब तक मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं? सर इसके लिए भी 21 जो 5 में 21 का आ रहा है ना, सितंबर से पहले उसको कंप्लीट करना चाहिए था। इन्वोक तो 21 के बाद करेगा, लेकिन कंप्लीशन जो है उस इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंटेशन सितंबर से पहले पूरा हो जाना चाहिए था। सितंबर के बाद पॉसिबल नहीं, सितंबर 2021 के इन्वोकेशन बाद। 30 सितंबर 2021 की डेट है, पैराग्राफ 6 पैराग्राफ 6, और उसके 90 डेज के अंदर उसको रिस्ट्रक्चरिंग पूरी करनी है। तो बेसिकली उसके पास 30 दिसंबर तक का टाइम था। ओके, 30 दिसंबर के पहले पहले अगर है तो स्टैंडर्ड अकाउंट में जिनाइन मान सकते हैं। 30 सितंबर 21 के पहले आना चाहिए। वो तो खाली पड़ी है। इवन सर एक आरबीआई का सर्कुलर ये और तो मैं सर आपको आप अपनी बताता तरफ हूँ। से डेट डाल दो ना, दिसंबर की यदि आपको पे करना है तो। दिसंबर इज द लास्ट डेट। ओके। सर्कुलर हैं, 2 सर्कुलर और हैं जो कि नवंबर और फरवरी के महीने में आए हैं क्लैरिफिकेटरी। उसमें ये बोला है कि आपका जो लोन फाइल है आपको चेक करना है कि वो खाली नहीं छोड़नी चाहिए। अगर उन्होंने उस लोन फाइल को खाली रखा हुआ है तो आपके लिए समस्या का विषय है। तो जो फ्रेश सैंक्शन है उनको तो इमीडिएट आप इंप्लीमेंट कराओ कि फाइल को पूरी करें। जो पुराने हैं तो नेक्स्ट रिव्यू और रिन्यूअल जब आपका ड्यू होगा उस टाइम वो फाइल आपको कंप्लीट करानी है। तो ये आरबीआई का सर्कुलर का नॉन कंप्लायंस होगा अगर उन्होंने नहीं किया तो। एडिशनल पॉइंट आपको एफआईआर में डाल। ये जो है वो ड्यू डेट डालने के लिए है, इन्वोकेशन और एप्लीकेशन के लिए थोड़ा है। नहीं, मैं सर फाइल की बात कर रहा हूँ, मैं फाइल की बात कर रहा हूँ। इन्वोकेशन से अलग, मैं फाइल की बात कर रहा हूँ। सर एक बढ़ा केस के है 31 दिसंबर डेट। केसीसी लोन जो अपन को 5 साल के लिए मिलता है, ठीक है, उसकी रिन्यूअल डेट्स भी विद इन 6 मंथ्स है, या उस पे भी नॉर्मल जो केसीसी के जो रूल्स हैं कि 2 क्रॉप सीजन या 1 क्रॉप सीजन वो एप्लीकेबल होगी? सर आकाश जी, इसमें जो मास्टर सर्कुलर में लिखा हुआ है ना, उसमें कहीं पर भी बाइफरकेशन नहीं है केसीसी है उसके लिए। लेकिन फिर भी जो चीज पढ़ के समझ में आती है वो आपकी 180 डेज की जो उसमें फर्दर आपका शॉर्ट रिव्यू करके 2 रिव्यू आप कर सकते हैं। तो रिन्यूअल जो है मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आता है वो इतना है कि बाकी जनरल लोन्स के लिए है। और जहां तक केसीसी का सवाल है उसमें तो बुकलेट पहली 5 ईयर के लिए आपकी बन जाती है, और सब्जेक्टिवली कि वो फर्स्ट टाइम पेमेंट करे तो उसको 10% एनहांस होकर अगला मिलेगा। तो इस तरीके से इसमें वर्किंग चलती है। तो मतलब केसेस ऐसा है कि 5 साल तो हो चुके हैं उसको, ठीक है, एंड 180 डेज भी, और हाँ फिर भी रिन्यूअल पेंडिंग तो है। फिर 180 डेज भी ओवर हो चुके हैं, फिर भी रिन्यूअल अभी पेंडिंग है। बैंक का व्यू ये है कि सर इस पे भी, क्योंकि सिंस ये केसीसी लोन्स है तो 180 डेज वाला जो नॉर्म है वो इन पे एप्लीकेबल नहीं होता, और इस पे जो एप्लीकेबल होगा वो 180 दैट 2 क्रॉप सीजन और 1 क्रॉप सीजन के हिसाब से होगा। तो वो 2 साल का व्यू और लेकर चल रहे हैं। तो ऐसे मेरे इस ख्याल से तरीके से 180 तो डेज 8 में साल ना का हो गया। नहीं, 180 डेज के अंदर मेरे ख्याल से उन्होंने एक्सक्लूड नहीं करा केसीसी को, तो वो सबके लिए जनरली होना चाहिए। बाकी अदर जो हमारे एक्सपर्ट है वो देखिए। तो एनी अदर व्यू? सर उसमें बिल्कुल राजीव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपके जो मास्टर सर्कुलर है चाहे वो 15 वाला लो या अभी आप 21 का लो, कहीं पे भी स्पेसिफिक बाइफरकेशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द रिव्यू और रिन्यूअल कि केसीसी के लिए कैसा होगा, दूसरे अकाउंट के लिए कैसा होगा। तो आप उसमें एक चीज और देख सकते हैं कि जो इनिशियल सैंक्शन लेटर रहा होगा बैंकर्स उसमें नेक्स्ट रिन्यूअल या रिव्यू की डेट डालते हैं। तो अगर वहां से आपको पता चल जाता है तो एक आप वो देख लो, अदरवाइज जो जनरल रूल है आपको वही एप्लीकेबल होंगे। ओके। और जो क्रॉप सीजन का कॉन्सेप्ट जो है वो रिक्लासिफिकेशन के लिए है, रिव्यू के लिए नहीं है सर। रिव्यू के लिए, राइट सर, फाइन। आकाश जी, 5 लोगों ने रेज हैंड कर रखे हैं। हाँ, तो मैं उन्हीं से एक आध को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए। राइट सर, राइट। राजकुमार वर्मा सर। राजकुमार सर? Hello. Yes sir, we can hear you. Yeah.
मेरी एक क्वेरी है। एक होम लोन किया है और होम लोन के अंदर जो लैंड है कंस्ट्रक्शन के लिए दिया है, उसमें जो लैंड है वो माइनर से आई हुई है, क्या करना चाहिए? क्वेरी समझ नहीं आई आपकी। सर आपकी आवाज बराबर नहीं आ रही है, वापस बोलिए। राजकुमार सर, थोड़ा सा आप इंक्रीज कर सकते हैं अपना वॉल्यूम? एक मिनट जी। हेलो आपकी क्वेरी एक बार रिपीट कर दीजिए सर। जी जी, मैं क्वेरी रिपीट कर रहा हूँ। एक होम लोन है, वो कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है। जो लैंड है, जो मॉर्गेज हुई है उसमें, वो लैंड में एक शेयर माइनर का भी था। जब रजिस्ट्री हुई तो उसमें माइनर का शेयर था और उसमें कोई परमिशन नहीं ली गई। हेलो, यस सर, यस सर। तो परमिशन जो होती है, डिस्ट्रिक्ट जज से परमिशन लेनी पड़ती है रजिस्ट्री करने के लिए, तो वो परमिशन नहीं ली गई। तो मेरे ख्याल से तो जो लैंड है वो जो लैंड का टाइटल है वो तो वॉइड हो गया, और उस केस में क्या करना चाहिए? सर एक्सपर्ट्स, क्वेरी समझ में आ गई सर? आई मीन माइनर का शेयर है लैंड में और उस राइट। लैंड पे होम लोन लिया हुआ है, तो अब ऐसे में क्या जी। करना है? इसमें सर Subsidy मेरा जो अगर कैसे है कि जैसे इनिशियली लोन लिया गया होगा तो प्रॉपर्टी की डिटेल जो है हमारे एडवोकेट साहब जो लीगल ऑडिट करते हैं, लीगल वेटिंग करते हैं, वो पहले चेक करते हैं, राइट? जी और जो जी जी डॉक्यूमेंट बनते हैं लोन का जो आपका ये लोन एग्रीमेंट बनता है, उसके सिक्योरिटी एग्रीमेंट्स बनते हैं, उनके भी प्रॉपर लीगल वेटिंग होती है। जी तो ये जो माइनर वाला पार्ट है, ये तो एक वहीं पे उठना चाहिए था कि जो माइनर है उसके लिए आपको लेट से कोई स्पेशल परमिशन लेनी है, तो आपने परमिशन नहीं लिया। उसके अब कितना शेयर है सर उसका? नॉमिनल सा शेयर है या मेजर शेयर है? 1/3 शेयर है, 2/3 शेयर है 2/3 माइनर का है। जी। तो क्रिटिकल सिचुएशन। और अभी अकाउंट की अगर पोजीशन अगर अकाउंट तो रेगुलर है। 2/3 भी ना हो तो ये तो रेगुलर है। Yes. डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो बनी जाएगी ना, अगर माइनर अगर है, चाहे जी इसका जी, शेयर ना भी हो तो ये disputed अकाउंट property बनी जाएगी। अकाउंट सर एक तरीके से ये अनसिक्योर्ड हो गया ये फिर। पूरा अनसिक्योर्ड हो जाएगा क्योंकि बैंक मॉर्गेज नहीं कर पाएगी माइनर के शेयर को। इसमें एक सर सर्टिफिकेट लिया जाता है, नॉन इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। प्रॉपर्टी जी के केस में एक वो नॉन तो इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट लिया जाता है, तो यहाँ पे तो टाइटल फ्री ही नहीं है, तो आपको कैसे मॉर्गेज कर दिया उसने? जी जी जी, तो अब इस केस में क्या करना चाहिए? माइनर के बिहाफ पे किसी ने साइन किए थे क्या मदर राजकुमार ने जी? किए थे, मदर ने। ये भी एक माइनर सब्सटेंशियल आपका पॉइंट ब्लड है। रिलेशन ही है ना सर, ब्लड रिलेशन ही है ना। जी जी, ब्लड रिलेशन है। और तो लोन तो कितना माइनर के अलावा जो शेयर है वो किसका है? मदर का ही है मदर का ही शेयर है। जी। मतलब माइनर के गार्जियन के रूप में भी मदर ने साइन किए और खुद का जो पार्ट है उसके लिए भी मदर ने साइन किए। मदर ने किए और खुद अपने मदर के ने अपने शेयर के लिए भी किए। इसलिए सर चीज सामने नहीं आ पाई। इन माय ओपिनियन सर, इस केस में आपको अपनी लीगल ऑडिट फिर से करवानी चाहिए, नंबर 1। उस लीगल ऑडिट के बेस में आपको पता चलेगा कि वो टाइटल फ्री है या नहीं, आपके लिए मॉर्गेज हो सकता है या नहीं। अगर टाइटल फ्री नहीं है तो आपका ये अकाउंट हो गया अनसिक्योर्ड। अनसिक्योर्ड हुआ तो आपका रिक्लासिफिकेशन अकाउंट का हो जाएगा, अकॉर्डिंगली आप एमओसी इशू कर दीजिए। अरे सर अनसिक्योर्ड से ज्यादा तो मेरा सिक्योरिटी वैल्यू ही एकदम गिर गया, तो इसको डाउटफुल कैटेगरी में ले जाना पड़ेगा वो डायरेक्ट डाउटफुल में लेना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर 50% से ज्यादा वैल्यू डाउन हो गई सर, मास्टर सर्कुलर में लिखा हुआ है, अगर वैल्यू जी रिडक्शन 50% से ज्यादा डाउन हो रहा है तो उस केस में आप उसे देखिए। तो इसमें तो जी 2/3 डाउन हो गया ना सर, हाँ हाँ जी, हाँ जी, अनसिक्योर्ड तो निकल गया बिल्कुल मेरा। डाउटफुल में जाए, डाउटफुल में जाए। ओके, सर मैं थैंक यू। पूछना चाहूंगा कि माइनर के गार्जियन के रूप में जब मदर ने साइन किया है तो उसका कोई जी वेटेज है कि नहीं है? नहीं है सर। उसका कोई वेटेज नहीं है। जब तक डिस्ट्रिक्ट जज की परमिशन नहीं है तब तक कोई वेटेज नहीं है उसकी। मेरा इसमें एक और पैनल से क्वेश्चन है, क्या माइनर साइन करने के लिए अथराइज भी है? उसकी लीगल वैलिडिटी है? डॉक्यूमेंट्स में साइन करके उसको क्या फोर्स किया जा सकता है, फोर्सेबल किया जा सकता है कोर्ट में? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से तो नहीं है। इन्हें के हिसाब से नहीं कर कॉन्ट्रैक्ट सकते। ही है, लोन एग्रीमेंट तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता है ना सर। जी जी जी, बिल्कुल नहीं है। लॉ कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट माइनर ऑलवेज वॉइड।
थैंक यू। तो आकाश जी, नया हैंड रेज जो हुआ है उसको आप थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी दीजिए। जी प्रशांत जी बताएं। हेलो, सुन पा रहे हैं सर? यस सर। सर हमें इस बार पहली बार ऑडिट मिला था और हम ब्रांच में गए तो 2 अकाउंट ऐसे मिले जिनके की 30 लाख के उनका वर्किंग कैपिटल का लिमिट है, लेकिन 2 साल से वो स्टॉक और स्टॉक में जो दे रहे हैं वो 17 लाख का ही वो दिखा रहे हैं अपने बैलेंस शीट में भी, और स्टेटमेंट तो वो दिए ही नहीं है 2 साल से अपने। और हर महीने जो है सिर्फ वो इंटरेस्ट के लिए ही पेमेंट किए जा रहे हैं, उसमें कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है। इसके हिसाब से सर मुझे जो समझ में आ रहा है आपका, एक तो इनहेरेंट वीकनेस है कि अगर वो सिर्फ इंटरेस्ट ही पे करते हैं, बाकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता। हाँ, बाकी कोई ट्रांजैक्शन नहीं। अगर कोई और ट्रांजेक्शन नहीं है तो इस अकाउंट में इनहेरेंट वीकनेस हो गई। दूसरा, ये जो सिर्फ 17 लाख का स्टॉक दिखा रहे हैं, तो एक तो आप ये जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन है या नहीं है? नहीं देखा है कि इसमें जीएसटी का तो कोई पेपर ही नहीं दिया है। नहीं, क्योंकि जैसे अमाउंट आप 17 लाख का स्टॉक बता रहे हैं, तो उसके हिसाब से अगर मैं रिवर्स कैलकुलेट करके देखूं तो इसका ज्यादा टर्नओवर होगा, 50 लाख से ऊपर का टर्नओवर होगा इसका। और उस केस में इसमें आप देखो कि क्या जीएसटी रजिस्टर्ड है, और जीएसटी रजिस्टर्ड अगर है तो आप उसके फाइलिंग भी देख सकते हो। और अगर ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिनका भी आप केस बता रहे हैं, तो आप आरओसी फाइलिंग से भी देख सकते हो। प्रोप्राइटरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड नहीं। प्रोप्राइटरशिप है, तो आप जीएसटी से जरूर चेक कीजिए कि इसका और भी मतलब फाइलिंग हो रहा है या कुछ भी नहीं हो रहा है। दूसरा, लेटेस्ट जो आपके पास फाइनेंशियल है उसमें क्या पोजीशन है इसकी इन कंपैरिजन टू लास्ट ईयर। और आपने दूसरा बोला कि इसने स्टॉक स्टेटमेंट दिया ही नहीं है 2 साल से। हाँ, नहीं दिए। तो रिन्यूअल सर कैसे हुआ सर? अब सर इसके हिसाब से तो अगर पुरानी डीपी आप लेंगे तो अकाउंट तो ऑलरेडी एनपीए है। इसमें तो डीपी कैसे हुआ और रिन्यूअल कैसे हुआ है? तो रेनुअल भी तो इनका ड्यू है, रेनुअल भी ये लोग नहीं कराए ना अभी तक। हाँ तो सर रिन्यूअल भी अगर 180 डेज से अगर ज्यादा ओवरड्यू चल रहा है तो नॉन फाइनेंशियल ग्राउंड पे ये एनपीओ में चला जाएगा। और वैसे भी आप इंटरेस्ट भी वीकनेस बता रहे, खाली इंटरेस्ट पे कर रहे हो, तो मुझे तो डाउटफुल 3-4 ग्राउंड आपके बन गए सर, इन सारे पहले ग्राउंड एनपीए हो जाना चाहिए था सर। ये तो एनपीए 1 अप्रैल को ही हो जाना चाहिए, 21 को। नहीं 21 को क्यों, और पहले हो सकता है ना सर, जितने सालों से दिया नहीं है उसने डीपी के लिए। जी जी। आप जितना पहले से बनाएंगे उतना फायदा होगा सर। इसमें एमओसी देना होगा ना सर? यस सर। यस सर। जी, थैंक यस। राजकुमार वर्मा जी। राजकुमार वर्मा जी का हो गया मेरे ख्याल से। हो गया। हाँ, राजकुमार जी का हो गया। उनका हैंड सौरभ रह गया होगा। ठीक ये है, सौरभ जैन जबलपुर को कर दीजिए, सौरभ जी कर दीजिए, सौरभ जैन जबलपुर। सौरभ सर प्लीज यू मे आस्क। हेलो, यस सर। आवाज आ रही है सर आपको? बिल्कुल सर, आ हाँ रही है सौरभ सर। जी आ रही है। सर मुझको ये पूछना था कि ये जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं, इस पर एग्रीकल्चर के कोई आईआरएसी नॉर्म्स लगते हैं कि नॉर्मल नॉर्म्स लगते हैं? राजीव जी बेटा बताइए। सर 2015 के बाद जो है ना एग्रीकल्चर जो एडवांस है उसकी एग्रीकल्चर को उसमें पहले क्लासिफाई होता था डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, लेकिन 2015 से ऑनवर्ड्स अब ये 3 कैटेगरी में क्लासिफाई होता है। तो कोल्ड स्टोरेज जो है वो आपका पहले बात तो प्रायोरिटी सेक्टर एग्रीकल्चर एडवांसमेंट पार्ट में आता है। लेकिन जहां तक आपका सवाल है कि सर ये क्रॉप लोन पे बेस होगा या नहीं होगा, है ना, तो उसके लिए हमारे पास जो गाइडेंस बोर्ड है हमारा आईसीआई का चैप्टर नंबर 10, उसी से हमें इसका आंसर मिलेगा। तो कोल्ड स्टोरेज में आप आगे क्या पूछ रहे हैं, जरा थोड़ा सा आगे बताएं तो मैं इसमें और सर कोल्ड स्टोरेज है, मान लीजिए वो मोर देन 2 साल से आउट ऑफ ऑर्डर है, तो आईआरएसी नॉर्म्स बैंक का कहना है कि इस पे एग्रीकल्चर के लगेंगे क्रॉप सीजन वाले। नहीं सर, क्रॉप सीजन के लिए तो एनेक्सर 2 है सर, उसी के लगेगा, उस पे नहीं लगेगा। कोल्ड आप स्टोरेज अगर पे नहीं लगेगा सर। एक्चुअली क्या है सर, कोल्ड मुझे स्टोरेज पे नहीं इसमें लगेगा, बहुत बड़ा डाउट वो सिर्फ फार्म क्रेडिट पे है सर। सर जो क्रॉप सीजन वाला ना वो फार्म क्रेडिट में है, और फार्म क्रेडिट के अंदर ये एनेक्सर 2 में फॉल नहीं करता। हाँ सर, ये सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी नहीं है ये कोल्ड स्टोरेज,
ये तो 6 करोड़ के सर एक्सपोजर है बैंक में, इसलिए मैं आपसे पूछा। बेसिकली ये तो एग्रीकल्चर अलाइन एक्टिविटी का पार्ट है सर, हाँ, तो उसमें सर ये अलाउ है 90 मतलब डेज। हाँ 90 डेज वाले लगेंगे सर, 90 हाँ डेज सर, वाले। प्रायोरिटी फैक्टर है वो एक अलग चीज है, पर 90 डेज के लगेंगे। हाँ 90 डेज लगेंगे सर, आईरेक 90 डेज लगेंगे। सर एक ही चीज और, ये पूरी इमरजेंसी क्रेडिट लाइन जो अभी है, ये इसके एनपीए के नॉर्म्स क्या रहेंगे सर? क्योंकि नॉर्मल 90 डेज ही रहेंगे। नॉर्मल रहेंगे सर 90 डेज वाले। और गवर्नमेंट नॉर्मल रहेगा, गारंटीड तो नहीं रहेगा सर ये? नहीं नॉर्मल केस, क्योंकि सेंट्रल नॉर्मल गवर्नमेंट रहेगा सर। गारंटीड है ये सर। नहीं सर वो नहीं गारंटीड है, पर सर एनपीए तो नॉर्मल के हिसाब से ही होगा। नॉर्मल के हिसाब से ही होगा सर, इसमें कोई अलग से वो नहीं रहेगा सर। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी गारंटी आपको मिल गई जीसीएल में? सर गारंटी नहीं है, स्कीम ही है कि गवर्नमेंट गारंटीड है, इसमें स्कीम है, गारंटी नहीं है सर। स्कीम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट आप बोल रहे हो वो एक अलग नॉर्म होती है कि अगर हाँ वो सेंट्रल मैं ठीक है, गवर्नमेंट मैं समझ रहा हूँ सर, वो अलग नॉर्म्स होती है, मगर ये जस्ट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये It's बैंक like a CGTMSE सर। हाँ हाँ ठीक है, तो वो एक अलग स्कीम है, ये एक अलग स्कीम है। इसमें आपको नॉर्मल 90 डेज वाला ही प्रोसीजर लगेगा सर। और सर इसमें सबसे बड़ा तो ये था कि ये दिया था एंड यूज बिजनेस यूज था, मगर एंड यूज कहीं पर भी कंफर्म नहीं है। सारे लोन जो है वो एनपीए बचाने के लिए यूज हुए हैं, इनमें क्या करें सर? क्या इसको भी एनपीए कर दो? कोविड लोन जो दिए गए थे वो तो सर पर्पस यही था वैसे कि बिजनेस को सरवाइव करें, और जो एंड यूज बिजनेस यूज है, इसके अलावा कोई यूज नहीं रह सकता। एंड यूज बिजनेस यूज है, लेकिन अगर आप पे है डाटा कि इन्होंने उस फंड का डाइवर्जन किया है तो फिर वो एक अलग बात है, फिर हम उसको डाइवर्सिफिकेशन और फंड में ले सकते हैं। अदरवाइज तो पर्पस तो प्योरली बिजनेस को सरवाइव करने का था, वो आप सब लोग समझते हैं कोविड के पीरियड में। और जो आप कह रहे हैं गारंटी वाला, उसमें मेरे ख्याल से 2 बार इसमें मिला था। शुरू का 10% था, वो अलग कैटेगरी में था, 20% अलग में था, वो लेकिन पूरा इनिशियली 90 डेज वाले 10%। नॉर्म से लगे। हाँ सर, एक और आखिरी क्वेश्चन था, ये जो टर्नओवर मेथड से आजकल डीपी देते हैं, तो उसमें डीपी तो कैलकुलेट करते नहीं है जो नॉर्मल मेथड से है, तो इस केस में डीपी कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्टॉक अनुरुद्ध जी स्टेटमेंट की तो बताएंगे इसके बारे में। रिक्वायरमेंट है ही नहीं सर इसमें। किस अनुरुद्ध जी बेसिस में बताओ सर? सर। सर टर्नओवर आजकल जो ज्यादातर लोन वर्किंग कैपिटल के हो रहे हैं वो टर्नओवर मेथड से हो रहे हैं। सर उसमें दोनों जो प्रोजेक्शन की आप बात कर रहे हो ना, प्रोजेक्शन बेस्ड जो है, नहीं प्रोजेक्शन बेस है, टर्नओवर का प्रोजेक्शन बस रहता है उसमें। नहीं एक आपका प्रोजेक्शन बेस्ड होता है जिसमें डीपी आपका वर्किंग कैपिटल पहले एनालाइज करते हैं और उसके बेसिस में देखते हैं आपकी कितनी डीपी बन रही है, वो रेगुलर चलाते हैं। दूसरा आपका रेगुलर स्टॉक स्टेटमेंट के बेसिस में देखते हैं, तो उसमें जब आप डीपी कैलकुलेट करते हैं जी। नहीं सर, एक टर्नओवर मेथड है जिसमें सिर्फ 20% ऑफ टर्नओवर जो है वर्किंग कैपिटल लिमिट दे देता है बैंक। नहीं सर, इसका मुझे स्पेसिफिकली डायरेक्ट मैं इस पे ये केस मैंने देखा नहीं है कोई जो आप अभी कह रहे हैं। आजकल मैक्सिमम फंडिंग सर जो बैंक है वो टर्नओवर मेथड से ही कर रही है, छोटी फंडिंग। सर काफी सारी बैंकों ने स्टॉक स्टेटमेंट मंगवाना बंद कर दिए हैं। बंद कर दिया है, वो तो बराबर है सर। और उसकी जो ड्राइंग पावर कैलकुलेशन वगैरह कर रहा कैसे है, देख, उसमें एनपीए के नॉर्म्स कैसे देख चेक कर पाएंगे डीपी के बेस पर सर? वो बड़ा कठिन काम है सर। उसमें साल में एक बार तो स्टॉक स्टेटमेंट मंगवाने का रहता है जनरली, तो एक बार वो जो स्टॉक स्टेटमेंट आया है वो प्रॉपर है कि नहीं है वो इंश्योर करना है। और उसमें जो भी स्कीम जो आपके बैंक ने बनाई होगी उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन दिए होंगे कि आपको ये चीजें फॉलो करनी है। यदि वो सब फॉलो हो रही है तो ही आप एनपीए और नॉट एनपीए के चक्कर में जाए। हाँ, क्योंकि सर अभी जितनी भी लोग क्वेरी करते हैं वो नॉर्मल आप देखते हैं स्टॉक स्टेटमेंट और इसके, मगर आप देखेंगे ज्यादातर बैंक में टर्नओवर मेथड से ही फंडिंग हो रही है आज के समय में, इवन 50 से 60 लाख रुपए तक की। टर्नओवर खत्म कर दी। सेक्शनिंग नॉर्म्स में लिखा होगा कि टर्नओवर के बेसिस में डीपी कैसे अराइव की जाएगी, वो 20% रहती है सर, वो स्पेसिफिकली मेंशन होगा सर। तो वही क्राइटेरिया आपने चेक करने हैं। नहीं वो तो ठीक है सर, अब अगर इसमें ड्राइंग पावर तो हम चेक कर नहीं पाएंगे तो फिर एनपीए नॉर्म्स जो है वो कैसे लगाएंगे 180 डेज वाले? नहीं सर, उसमें देखो वो जो क्राइटेरिया है वो सिर्फ डीपी कैलकुलेशन के लिए है। अब जो डीपी आपकी उसके हिसाब से बन रही है तो आप देखो आपका यूटिलाइजेशन उस डीपी से ज्यादा है या कम है, और अगर आपका वो ज्यादा है तो फिर देखो आप कंटिन्यू 90 डेज से ऊपर हो रहा है या नहीं। अगर फिर 90 डेज से ऊपर हो रहा है उस डीपी के से ज्यादा, मतलब आउट ऑफ ऑर्डर या एक्सेस उसने यूज किया है और 90 डेज से ऊपर है, देन यू कैन क्लासिफाई एज एनपीए। ठीक, थैंक यू वेरी वो मच। तो मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डीपी उन्होंने स्पेसिफाई किया है। डीपी और जो आईरैक नॉर्म्स है, जो क्लासिफिकेशन की नॉर्म्स है, वो तो सेम ही रहेंगी सर।
नहीं वो ठीक है सर, जब टेक्निकल मैटर पे करते हैं कि उसकी डीपी नहीं आ रही है और हम उसको हाँ, एनपीए कर सकते करते हैं, जैसे जस्ट इसके पहले एक केस था कि 17 लाख का डीपी आ रहा था उसका, सीसी लिमिट 30 की थी। तो इस तरह के केस में हमको थोड़ा दिक्कत जाती है, क्योंकि ज्यादातर फंडिंग थर्ड टर्नओवर मेथड से हो रही है, क्योंकि स्टॉक ये स्टेटमेंट क्वेश्चन भी नहीं रहेगा और उसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी। ये तो ये स्टॉक स्टेट की रिक्वायरमेंट तो काफी सारे लोन्स में खत्म कर दी है काफी सारी बैंकों ने। वो टर्नओवर मेथड से कर रहे हैं, सौरभ जी का कहना सही है। तब इससे में इनकी समस्या है कि डीपी कैसे निकाले, लिमिट तो बन गई टर्नओवर के बेसिस पे, पर डीपी कैसे निकाले। अब इसमें एक बात सौरभ मतलब जी ये भी इसका समझना एक्सेस पड़ेगी, यूज, हाँ हाँ, ये भी समझना पड़ेगी कि क्या डीपी और लिमिट दोनों की बात कर रही है बैंक की, केवल लिमिट से ही चल रही है। तो बेसिकली कि वो भाई सीसी लिमिट नहीं है, वो सिर्फ एक लोन अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए आपको बोल देते हैं कि 20% ऑफ द टर्नओवर, और एल्स वो अकाउंट एज ए ओडी ट्रीट होता है सर। नहीं सर, वो सीसी लिमिट ही होता है, अच्छा, ये ठीक है, लिमिट ही है। अल्टरनेट मेथड है। हाँ हाँ ओके। सर, ये तो सौरभ जी, है। आप एक काम कीजिए, मुझे एक बार जो आप वाला केस है उसके कुछ डॉक्यूमेंट अगर आप मेल कर सके तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊंगा कि क्या कैसा इसमें हो सकता है। नहीं ठीक है सर, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको उसकी जो है वो पूरा मेल करवा दूंगा। हाँ, सिर्फ अगर शरद सैंक्शन जी, भी आप भेज देंगे सो आई विल बी एबल टू हेल्प यू। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। जी, आकाश जी एक और बचे हैं केशव जी, अब हमारा प्रोग्राम भी अंतिम दौर में है, राइट। हम करते हैं। 8:26 हो गए, हमारे पास 4-5 मिनट है केवल। तो केशव केशव जी, जी को आप केशव भट्ट अगर जी मेंबर की प्लीज। रिक्वायरमेंट होगी तो बढ़ा सकते हैं। शरद जी आप 4-5 मिनट वाली बात मत करो, आप आगे बढ़ा लेंगे हम। अभी हम 15 दिन तक करेंगे ना, 15 तारीख तक हमारे पास प्रोग्राम है। केशव भट्ट जी प्लीज, केहवा भट्ट आई सपोज। आई थिंक इनकी कोई क्वेरी, हाँ मतलब ये गलती से हैंड रेज हुआ हुआ है सपोज। कोई चैट बॉक्स में पड़ी क्या एक आध क्वेरी, तो हम ले लेते हैं उसको, कोई लेटेस्ट क्वेरी। अदरवाइज मेरे पास ईमेल पे क्वेरी है, क्वेश्चन आंसर में भी है। में है काफी क्वेश्चन सारे, आंसर 10 है क्वेश्चन आंसर में है। आंसर में। सर क्वेश्चन आंसर मैं अगर मैं लूं तो सर, इन केस ऑफ अ स्मॉल लोन गिवन बाय अ बैंक टू स्पीकर सैंक्शन, no repayment has been received, what should we do in such case? I mean कौन सा चैट बॉक्स में लगे? chat question answer session sir, गजेंद्र अग्रवाल जी का क्वेश्चन है। in case of small loan given by a bank to speaker sanction, सर ये क्वेरी प्रॉपर नहीं दिख रही है एक प्रॉपर बार। नहीं है एक्चुअली सर। हाँ। हाँ, मैं सोचता हूँ आकाश जी, मेरे पास जो ईमेल पे क्वेरीज आई है बड़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड, वो ले उसी में लीजिए से सर। एक क्वेरी ले हाँ लेता हूँ। हाँ, राइट सर, राइट। सर इसमें एक क्वेरी है जी, शरद जी, पीयूष सर बोल रहे हैं। हाँ उसमें एक राजकुमार वर्मा जी की क्वेरी है। पहली चीज की, इफ अ ब्रांच हैज फैसिलिटी पार्क्ड which is more than 10% of its advances, तो उस केस में तो एनेक्सर 3 ऑफ LFR हमको भरना ही है। आरबीआई का गाइडेंस उसमें बहुत क्लियरली मेंशन करता है। पर साहब का ये भी क्वेरी है कि मेन फैसिलिटी कहीं और सैंक्शन हुआ है, यहाँ पे सिर्फ पार्क्ड है। पार्क्ड तो सर ऐसा कभी होता नहीं है कि पार्क्ड ही रहे। तो जो भी फैसिलिटी है ब्रांच मतलब बोरोअर उस जगह से यूज कर रहा है, तो कायदे से हमको उस फैसिलिटी से पर्टेनिंग तो कम से कम भरना चाहिए। मे भी हो सकता है कि कोई बड़े लोन का कंसोर्शियम वाला अकाउंट हो तो उसने 10 जगह अकाउंट खोल के रखा हो, पर जो अकाउंट हम देख रहे हैं एटलीस्ट उस पे तो हमको कमेंट करना ही चाहिए। एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ Right, sir. कि in case if MSME term loan restructure in COVID 2.0 and if becomes NPA, what will be the date of NPA after restructure or original date before restructure? सर इसमें रिस्ट्रक्चरिंग के बाद वाली डेट की आएगी, क्योंकि कोविड 2.0 में हमने पहले भी डिस्कस किया था कि इसमें स्टैंडर्ड होना चाहिए 31 मार्च 21 को। यदि 31 मार्च 21 को स्टैंडर्ड है और रिस्ट्रक्चर किया है और रिस्ट्रक्चरिंग जब भी करा होगा तो उस डेट के बाद में ही देखेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और में ले, और कोई ओपिनियन आ रही है क्या इस केस पे? नहीं, और कोई ओपिनियन आ रही है? ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन, जी जी जी, एक लास्ट क्वेश्चन और ले रहा हूँ। इन केस ऑफ मुद्रा लोन्स विच आर टर्म लोन एंड आर इरेगुलर बट क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड और सब स्टैंडर्ड,
still they are entitled for 2% subsidy from government. What are your views? आई थिंक मुद्रा लोन के लिए शरद जी वहां पे कहीं ये नहीं लिखा है कि इंटरेस्ट सबवेंशन के लिए आपका अकाउंट जो है वो रेगुलर ही रहेगा, तो इसलिए वो इरेगुलर जो है स्टैंडर्ड कैटेगरी में या सब स्टैंडर्ड कैटेगरी में, आई थिंक दैट विल नॉट बी रिलेवेंट. पीयूष जी, इफ यू वांट टू ऐड समथिंग. नहीं सर, इसमें मैं कुछ ऐड नहीं करना चाहूंगा. राजीव जी, सब स्टैंडर्ड में भी देना है क्या सब्सिडी हमको? सर जो सब्सिडी वाला पार्ट है ना, वैसे तो फिर वापस वही है कि आपको जो सब्सिडी के जो इनके डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है वो चेक करनी पड़ेगी आपको, लेकिन मोटा मोटा अनुरोध जी जो कह रहे हैं वो ठीक है. उस पर एग्री विद दैट. सब स्टैंडर्ड में भी हमको सब्सिडी देना है? हाँ जी सर, सब्सिडी तो बैंक क्लेम करेगा, वो अकाउंट सब स्टैंडर्ड हाँ. से स्टैंडर्ड भी हो सकता है कुछ रिपेमेंट करने के बाद, तो बैंक को अपना क्लेम तो नहीं छोड़ना चाहिए. ये हो सकता है कि वो अकाउंट सब स्टैंडर्ड से आगे लॉस चले जाए तो जो नॉर्म्स है वापस सब्सिडी वापस भेजने के, वैसे बैंक वापस भेज देगा, क्योंकि बैंक जनरली सब्सिडी जो है वो स्क्वायर ऑफ जब लोन का आखिरी रिपेमेंट होता है जब ही करती है. ओके. बैंक के पास ये ऑप्शन है कि अगर बारोवर का अगर एंटाइटलमेंट नहीं बन रहा है तो देन इट विल रिवोक. केशव भट्ट जी ने फिर हाथ रेस किया, हैंड रेस. वो लग रहा है गलती से हो रहा है. तो गलती से हो रहा है सर, आई थिंक. ओके. मैं समझता हूँ आज का हम अपना प्रोग्राम जो है उसे समाप्त करें और बाकी क्वेरीज जो है उन्हें कल के लिए कैरी फॉरवर्ड करें. राइट सर. मैं हमारे सेक्रेटरी लोकेश जी है हमारे सेक्रेटरी? नहीं, आई थिंक वो नहीं है. नहीं, आपके सेक्रेटरी लोकेश जी है. मतलब इस समय है या नहीं वो चेक कर लो. बाकी सीआरजी के इस समय के सेक्रेटरी लोकेश जी है. एक्चुअली धन्यवाद व्यक्त करने की जो फॉर्मल जिम्मेदारी, वैसे तो हम सभी आपका धन्यवाद व्यक्त करते हैं, हमारे स्पीकर्स का, एक्सपर्ट्स का, हमारे चीफ गेस्ट का. हम भी धन्यवाद करेंगे आपका सर, आपने हमें बुलाया और मौका दिया मेंबर से इंटरेक्ट करने का. हमारे पार्टिसिपेंट्स का सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आशा और उम्मीद करता हूँ कि हमारे जो एक्सपर्ट हैं आगे भी जब जब हमको उनका सहयोग लगेगा वे हमारे लिए उपलब्ध रहेंगे. और पार्टिसिपेंट से भी मैं उम्मीद करूंगा कि जिस प्रकार का प्रेम उन्होंने हमारे कार्यक्रम को दिया है, आज तो करीब 150 के आसपास पार्टिसिपेंट्स बने रहे. कल जब पहला दिन था तब 200 से ऊपर पार्टिसिपेंट्स बने रहे थे और 3 दिन में हमारे 900 से ज्यादा रजिस्ट्रेशन है. तो पार्टिसिपेंट्स का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे प्रति. मैं इसमें बताऊं, आपका प्रोग्राम ऐसा है जिसमें पार्टिसिपेशन जितने कम हो गए ना उतना अच्छा है. इसका मेंबरों को आंसर मिल चुके हैं. क्वेरीज तो सबकी एक जैसी है. तो मैं तो चाहूंगा कि कल आपके पार्टिसिपेंट जो है और कम हो जाए. मैं तो चाहता हूँ और 30-40 और घटे. मुझे लगता वैसे भी सर इस कल हमने कुछ आंसर दिए है, नहीं तो पता चला कल मेंबर फिर दोबारा पूछेगी यार ये एक्सपर्ट सही नहीं थे, दूसरे तो रह लेते दोबारा से. नहीं सर, वैसे भी आज बहुत सारे मेंबर्स आई थिंक फर्स्ट ब्रांच कंप्लीट करके एंड दे मूव टुवर्ड्स द सेकंड ब्रांच. मैंने बहुत जनों से बात करी तो धीरे धीरे वो ऑडिट कंप्लीशन की तरफ पहुंच रहे हैं. So that might be the reason. Anyways, thank you Anirudh sir and Piyush sir and Rajiv bhaiya for joining us and hope जैसा शरद भैया ने बोला कि आप हमेशा CIRC के लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे और जब जब हमको CIRC को बैंक ऑडिट्स पे या एनी अदर टॉपिक्स जिस पे भी होंगे आप हमेशा अवेलेबल रहेंगे सर. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू पीयूष जी. बहुत बहुत धन्यवाद. नमस्कार सर. भाई साहब, आकाश जी. Thank you. So should I end? हाँ, should I? जी. Thank you.